and this topic is linked with core of investment banking, I would say, how the capital flows in international markets, what is the reason behind that, and how things work out in forex. So many times you might have wondered, and you might have came across these few questions in your mind as well. These are very curious questions that must come in your mind. Question number one would be, why different exchange rates of different currencies exist in the world? Means, what is the reason behind the exchange rates of various countries, right? It's a very obvious question that must come in your mind. Second question is, why dollar is so famous throughout the world? Means, in international trade you will see dollar, you know everywhere, everything is related to dollar, and everything summarizes back to, when it comes to the world currency, it is the only dollar that shines apart, right? So why it is so? What could be the reason behind that? This one is easy and you must be knowing this. Next is, what if there is one world, one currency, where you can roam anywhere, you can go anywhere? Why it is? What are the restrictions behind that, and what are the reasons behind those restrictions? Why not there is one single world? Why not there is one single currency? Why are borders existing in this world, right? So these are very obvious questions that you must be asking from yourself, right? Next question is, what if India starts using dollar instead of rupee? क्या हो जाएगा जब हम रुपी की जगह डॉलर यूज़ करना शुरू कर दें? एंड मैनी कंट्रीज डज दिस थिंग एज वेल, जिम्बाब्वे, इक्वाडोर, वहाँ पे उनकी अपनी करेंसी है नहीं, दे डोंट हैव देयर ओन करेंसी, दे यूज डॉलर. What if India does that? What could be the reason behind that? Or I would say, why not India uses dollar as well as rupee together? I mean, it's a very obvious question. और इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिया जा सकता है, we can use this question in a different way, like, what would happen if Nepal starts using Indian currency? Nepal or Pakistan, when they start using Indian rupee. Now next question that should come in your mind, कि सर मुझे फॉरेन सेटल होना चाहिए या इंडिया? मीन्स, वेयर शुड यू गेट सेटल्ड इन योर लाइफ, इन इंडिया और फॉरेन? एनी कंट्री, मीन्स आई वुड से दुबई, यूरोप और अमेरिका, नदर्न अमेरिका, एनी पार्ट ऑफ नदर्न अमेरिका, और इट कुड बी सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया. If yes, then why? If no, then why? And how investment banking is linked with forex, and how investment banking is linked with capital flow? I would say this is the core of investment banking, worldwide investment banking. This topic is very important and very interesting as well, right? So let's start the session, and I hope you have given a thought to these questions once in a life, in your life once, anytime when you were in school days or in college days, you might have thought these questions. Many of you must be knowing these answers as well. But today we are going to see it in terms of finance and in terms of investment banking only. No patriotism कि हम तो Indians हैं तो हम Indian नहीं use करेंगे. It's not like that. We are going to see the finance behind it, right? Now let's begin, and let's start the topic with few pointers I would like to tell you, so that it becomes easy for you to understand how we will be moving ahead, right? Will increase in India uses dollar instead of rupee. Okay, we'll see. You can answer the questions, guys. I will be reading the questions as such. Now, yaad rakho. So let's see. This is India. This is world, right? Money flows inside India, outside India. This is capital, actually. Capital keeps coming in, keeps going out. It's a constant flow, right? We will be discussing how it flows, why it flows. Yaad rakho, always remember this thing. Wherever money goes, that thing always appreciates. जहाँ भी पैसा जाता है, wherever money supply goes, that thing will always appreciate. If money goes into real estate will inflate or appreciate. The value of real estate will appreciate. If the money goes in a sector, could be pharma sector, could be IT sector, the stocks of that sector will go up. If money flows into, I would say, some another form of investment, for example gold prices will go up. So पैसा जहाँ भी जाता है, wherever money flows, the prices of that thing will always go up. Very simple to understand and very simple to keep this thing in mind. So whenever money will come inside the country, whenever money will flow inside the country,
तो द डोमेस्टिक करेंसी विल ऑलवेज अप्रिशिएट. मीन्स जब भी पैसा इंडिया में आएगा, वेन एवर मनी विल गो इनसाइड इंडिया, सो इंडियन रुपी विल ऑलवेज गो अप, राइट. एंड वेन एवर दिस मनी विल गो आउट ऑफ इंडिया, पैसा दूर जाएगा इंडिया से या बाहर जाएगा, इट विल गो आउटसाइड, रुपी और डोमेस्टिक करेंसी विल ऑलवेज डेप्रीशिएट, वो हमेशा नीचे गिरेगा. इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. वेन एवर रुपी विल डेप्रीशिएट, इट इज़ गुड फॉर अस, बिकॉज जब जब रुपी नीचे गिरेगा, इट विल मेक आवर एक्सपोर्ट्स चीपर, हमारे एक्सपोर्ट्स सस्ते होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दिस फोन इज़ कॉस्टिंग मी 1000 rupee, means I am sitting in America and this phone is costing me 1000 rupee, and if rupee depreciates, it will cost me 900 something. तो मुझे तो फ़ायदा ही है ना. So whenever rupee will depreciate with respect to some another currency, definitely the exports will become more cheaper. So it is good for a country. So depreciate होना country के लिए अच्छा रहता है बहुत तरह से, because exports become cheaper, right? Now, this is something we are going to discuss, expansionary, contractionary, how it goes, it works, right? If the world grows, remember guys, अगर world grow करेगा, if they have good business cycles throughout the world, it is good for India, because they will earn more and they will buy more for us, from us. So if world grows, it is good for domestic exports. If India grows with respect to the world, so it is bad for us, because दुनिया grow नहीं करेगी अगर हम grow करेंगे, so we will have more imports, right? It was just a overview, we are just starting now, right? Guys, now whatever I told you, it is the conceptual thing behind that. I want you to see this table, everybody. This is India, USA, Europe, Africa, Japan and China. Africa means all the African countries, Europe in all the European countries, right? Why the money flows in this world? This is a very important concept to understand. I want you to see this thing, guys. Loan interest rates, ये देखो ज़रा सब. इंडिया में it is 8% to 14%. This is the range, right? USA में it is 6% to 7%. Again, this is the range. Europe में it's too less. Just see, 4% से 7%. Means you can take loan at the rate of 4% in Europe, all the European countries, on an average I'm saying. Africa, again it is 8%, could lead up to 12%. In some countries it can touch up to 20% as well. So this is Africa. Coming to Japan. Japan में थोड़ा सा tricky and थोड़ा interesting and it's exceptional as well. Everything is near to zero. देख लो, repo rate 0.5, मतलब zero ही समझ लो. Loan interest rate is again 0.8, 0.9, 0.7, 1%, near to zero. FD 0.1, 0. So tricky. सब देखो 0%. How could this be possible in a country like Japan, right? We need to think. And China, 3%, loan is 4%, and FD 1%. The question that should come in your mind, guys, कि सर यहाँ से लोन लें 4% में, अगर हमने 100 करोड़ का लोन लिया 4% में, राइट, और यहाँ FD में लगा दो इंडिया में 6% में, तो बैठे बैठे प्रॉफिट है कि नहीं है? गाइस टेल मी, इज इट अ गुड डील फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकर सिटिंग इन द हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ है? सारे सिंगापुर या यूरोप में या अमेरिका. डू यू थिंक सो कि वो ऐसा करते होंगे कि यहाँ से लोन लो सस्ता और अफ्रीका में इन्वेस्ट कर दो 6 to 8%, यहाँ से लोन लो सस्ता इंडिया में 7% में लगा दो FD में, 3% बैठे बैठे प्रॉफिट? इज इट सो? सो एब्सोल्युटली गाइज, दिस इज हाउ द मनी फ्लोज इन द वर्ल्ड, एंड दिस इज द रीज़न ऑफ द मनी फ्लोज इन द वर्ल्ड. किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, किसी कंट्री में ज़्यादा होते हैं. एंड हेयर कम्स द मेन रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हु आर सिटिंग एट द हेडक्वार्टर्स. वो क्या करते हैं? वो पैसा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में घुमाते हैं. दे जस्ट कीप रोटेटिंग द मनी. नाउ यहाँ पे 2 questions दैट शुड कम इन योर माइंड. सर, इंडिया और अफ्रीका में द रेट्स आर वेरी हाई, इन दीज कंट्रीज रेट्स आर वेरी लो. व्हाट कुड बी द रीज़न? चाइना भी रख लो. मीन्स USA, यूरोप में रेट्स आर सो लो. मीन्स इट इज़ अगेन
such a good observation that you should be seeing, right? Now coming to the concept again, guys, अगर मैं यूरोप में लोन लूँ और इंडिया में लगा दूँ एफडी में, तो बैठे बैठे आई विल बी मेकिंग 3% मनी. बट डू यू थिंक उससे पैसा यूरोप से सारा बाहर निकल के इंडिया में आ जाएगा? मनी इज़ फ्लोइंग फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, राइट? तो इंडिया में मैंने क्या कहा, कभी भी पैसा जहाँ जाता है, वेर एवर द मनी फ्लोज, राइट, वहाँ की जो डोमेस्टिक करेंसी होती है डैट एप्रीशिएट. तो इससे क्या होगा, इंडिया का जो रुपी है डैट विल गो अप. तो यूरोप की जो करेंसी है वो थोड़ा कम हो जाएगी. वन थिंग. एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एंड दिस थिंग वी हैड डन इन द प्रीवियस चैप्टर एज वेल गाइज, द मॉनेटरी पॉलिसी. जब पैसा जहाँ से बाहर जाता है वहाँ इन्फ्लेशन घट जाती है. मीन्स मनी सप्लाई व्हेन एवर इट विल डिक्रीज द इन्फ्लेशन. तो यूरोप से जब पैसा बाहर निकलेगा तो इट्स गुड फॉर यूरोप. एक तो यूरोप वालों को इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल रहा है 3% बैठे बैठे. नॉट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. अभी तो वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. वी आर जस्ट डूइंग द सेफ इन्वेस्टमेंट्स राइट नाउ, बैंक में, एफडी में या पीपीएफ में, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, दैट मनी इज फ्लोइंग आउटसाइड द कंट्री. इनकी मनी सप्लाई घटेगी, बिकॉज ऑफ दैट ग्रोथ विल डिक्रीज एंड इन्फ्लेशन विल डिक्रीज. इट्स गुड फॉर देम. इंडिया का क्या बेनिफिट हुआ सर? इंडिया का बेनिफिट हुआ बिकॉज वी आर पुअर नेशन एज सच. We need money, right? Money for our capital. We need capital infrastructure means capital intensive industries like manufacturing. We need highways, we need flyovers. हमें तो पैसा चाहिए. So money is coming to us बैठे बैठे. So the thing is that जो गरीब कंट्री होते हैं वो जानबूझ के इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखते हैं because they need capital, guys. So this is how money flows. And the rich countries, they intentionally keep the interest rates low ताकि पैसा बाहर ही जाए. अच्छा है, बाहर जाएगा, अच्छा है, इन्फ्लेशन कम रहेगी थोड़ा. दिस इज़ ऑल्सो वे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. बट दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न गाइज मनी इज़ फ्लोइंग इन दिस वर्ल्ड. जैसे हवा चलती है, एक जगह गर्म एक जगह ठंडा, तो जब गर्म ठंडा होता है तो हवा फ्लो करती है. दिस इज़ हाउ वेन एवर इंटरेस्ट रेट्स increases and decreases in two countries, the money flows. Money flows, and the reason behind that is to earn more profits. So what is the role of monetary policy? तो इस दुनिया में जो भी पैसा मूव कर रहा है, the main reason behind this is monetary policy, guys. हर कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी अलग होती है बिकॉज हर कंट्री की बिजनेस साइकिल अलग होता है. दैट वी आर गोइंग टू जस्ट कम टू द पॉइंट, टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. So that is why you got the answer. The reason of money flow in this world, पैसा क्यों यहाँ वहाँ भाग रहा है इतना ज़्यादा, it is because of interest rates. हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट रेट है, हर कंट्री की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है. एंड बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी क्यों अलग अलग है, बिकॉज सबकी बिजनेस साइकिल अलग है. कोई कंट्री रिसेशन में है तो कोई कंट्री बूम में है, कोई कंट्री एक्सपेंशन में है तो कोई कंट्री नीचे कॉन्ट्रैक्शन में है. So all the countries are having different phases of business cycle, and उस phase को overcome करने के लिए they make different monetary policies. I hope you got the point. But यहाँ पे there is one more observation that you should be thinking कि सर बार बार आप appreciation depreciation word use कर रहे हो. I am just using the word appreciation or depreciation. I never used this word devaluation or revaluation. ये तो you should have observed this thing. आपने सुना होगा करेंसी डीवैल्यू हो गई, करेंसी डेप्रीशिएट हो गई, राइट? सो दिस विल बी ऑल्सो कमिंग. अभी आपने देखा होगा गाइस, फ्यू डेज बैक रुपी स्टार्टेड फॉलिंग इमेंसली. बहुत ज़्यादा गिरा था रुपी एंड इट वाज अ बिग न्यूज़. तो वन रीज़न बिहाइंड दैट, नाउ यू गॉट द पॉइंट. उसके पीछे रीज़न क्या था? यूएस से यूरोप का बहुत पैसा इंडिया में लगा हुआ था. इंडिया वालों ने अपना इंटरेस्ट रेट घटाया तो वो पैसा बाहर मूव कर गया. पहले हमारे इंटरेस्ट रेट्स वर हाई. यू माइट हैव हर्ड द न्यूज़ फ्यू डेज बैक इटसेल्फ कि आरबीआई ने और थोड़ा सा नीचे किया है हमारा मतलब इंटरेस्ट रेट्स. सो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग? इंडिया अपना इंटरेस्ट रेट जब घटाएगा तो ये तो बराबर हो जाएगा यूएसए एंड इंडिया. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कीपिंग द मनी इन इंडिया? तो ये सारा का सारा पैसा जो यूएसए का यहाँ लगा था वो वापस चला गया यूएसए. So what was the reason behind that? The money went out. It was a suction of the money.
एंड दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न सारा का सारा इंडियन रुपी नीचे गिरा. इट्स नॉट कंट्री इज़ नॉट डूइंग गुड, इट्स नॉट रुपी इज़ नॉट डूइंग गुड, इट इज़ द फ्लो ऑफ द मनी गाइज. दिस इज़ ऑल्सो बिगेस्ट रीज़न. एंड जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, द हेड क्वार्टर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक, वो ये चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं. दे ऑब्जर्व दिस थिंग कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, सारा पैसा यूएसए का उठाओ भेज दो इंडिया में. इंडिया में पैसा लगाओ, 3% भी अगर पैसे का प्रॉफिट हुआ तो बैठे बैठे विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट्स येट. अभी तो हमने स्टॉक मार्केट में पैसा भेजा ही नहीं है, तो दिस इज सेफ इन्वेस्टमेंट. बट दिस इज हाउ द मनी फ्लोज एंड दिस इज हाउ मैनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स दे मेक मनी, right? Because investment bank have the portfolios. They invest some money in gold, some money in banking system, some money in stock. So they have a huge portfolio, guys. So one of the portfolio is forex as well, foreign exchange reserves, foreign currency reserves, I would say. So अब गवर्नमेंट क्या इन पैसे की इनकमिंग को बैन कर सकती है? यस, गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट दैट एंड गवर्नमेंट समटाइम्स मस्ट रिस्ट्रिक्ट दैट, राइट? एंड गवर्नमेंट क्या इसको बढ़ावा दे सकती है? पैसा आओ, मुझे पैसा चाहिए, भेज दो. यस, एब्सोल्युटली, गवर्नमेंट शुड डू दैट. नाउ लेट मी टेल यू हाउ. मलेशिया की एक केस स्टडी थी. साउथ एशियन कंट्रीज़ बोलते हैं इनको, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं. तो मलेशिया ने क्या किया? मलेशिया ने अपनी जो इनफ्लो था, FIIs बोलते हैं इनको, ये हमने पिछली क्लास में कवर किया था. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. दिस मनी इज़ वेरी वॉलेटाइल एज सच, राइट? सो दीज आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स. बहुत ज़्यादा पैसा आता है. इट्स नॉट 100-200 रुपये, 1000, लाख, करोड़. बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. बहुत ज़्यादा पैसा है. आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर दैट फ्लोज हियर एंड देयर, राइट? सो मलेशिया ने अपना ओपन किया था ऐसे ही, दे ओपन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फ्लडेड इनटू मलेशिया. इन मलेशिया की तो रातों रात इट वाज द ह्यूज मनी सप्लाई, और इट वेंट फॉर फ्यू ईयर्स. बट इसकी वजह से हुआ क्या? मलेशिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गई थी. बट एज सच मलेशिया ग्रीव एज वेल. पैसा बहुत आया, पर उसको रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ी. आई वॉन्ट यू टू, दिस इज़ योर होमवर्क, मलेशिया की केस स्टडी देखना. ये CFA के कैरिकुलम में भी है आपका. आई वॉन्ट यू टू सी द केस स्टडी ऑफ मलेशिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स. अब बहुत पैसा आया, उसकी वजह से गाइज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चलेगी. बिकॉज इट वॉज दे ओपनड एवरीथिंग, ऑल द गेट्स. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, सब हटा दिए इन्होंने. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि इतना ज़्यादा ओपन नहीं करना चाहिए. बट अब आपके माइंड में ये आना चाहिए, क्वालिटी में वन थिंग दैट शुड कम इन योर माइंड, नेट FDI. नो, इट्स नॉट अमृत, इट्स नॉट FDI. हमें तो FDI की बात ही नहीं चल रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट FIIs नाउ, इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल, राइट? अभी FDI आना है आगे, दैट वुड बी कमिंग. दिस इज द कैपिटल फ्लो फॉर इन्वेस्टमेंट सेक ओनली, राइट? नाउ कमिंग टू द टॉपिक, जस्ट इमेजिन गाइज, अगर ये सारे इंटरेस्ट रेट इक्वल होते, द क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यूज एंड द क्वेश्चन दैट शुड कम इन योर माइंड, सर अगर ये सारे इंटरेस्ट रेट इक्वल होते तो क्या पैसा फ्लो करता वर्ल्ड में? नहीं करता. तभी इंटरेस्ट रेट आगे पीछे हुए. सर ये इंटरेस्ट रेट सब कंट्रीज़ के आगे पीछे क्यों हुए? द रीज़न बिहाइंड दैट वॉज एवरी कंट्री इज़ हैविंग डिफरेंट बिजनेस साइकिल. फॉर एग्जाम्पल, अब जापान की मैं स्टोरी बताता हूँ आपको. सी गाइज, जापान वॉज डूइंग गुड एज सच. इट्स अगेन अ केस स्टडी, यू शुड बी नोइंग दिस थिंग. जापान वॉज डूइंग गुड, बट जापान में द थिंग वॉज दैट जापान हिट स्टैगफ्लेशन एंड डिफ्लेशन. मतलब इसका मिक्स चल रहा है अभी. समटाइम्स इट स्टैगफ्लेशन, समटाइम इट्स डिफ्लेशन. हो क्या रहा है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई, राइट? पीपल लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन अ बैंकिंग सिस्टम. तो उनका फेथ हट गया लोन लेने से या बैंक में पैसा रखने से, बिकॉज बैंकिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो कोलैप्सिंग, राइट? इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो रही है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, ग्रोथ कंट्री की कम हो गई है, जॉब, द अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो वेरी हाई. बिकॉज ऑफ दैट all the interest rates are just equal to zero. So over there it is a mixture of stagflation as well as deflation. अब इससे ज़्यादा क्या कर सकती है गवर्नमेंट जब इन्फ्लेशन बहुत हाई है? इन्फ्लेशन हाई हो तो एज आई टोल्ड यू, गवर्नमेंट तो इंटरेस्ट रेट ही नीचे घटा सकती है. तो ज़ीरो से कम कितना लेंगे अब? सो इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज स्टैगफ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एज सच. तो दे हैव डिफरेंट बिजनेस साइकिल. अफ्रीका की अलग बिजनेस साइकिल है, तो इसके लिए अलग मॉनेटरी पॉलिसी लाने पड़ी. अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहती है?
So we will be coming to that. So I hope you got the point. What is the reason behind the capital flow? That is the monetary policy and different interest rates because of different business cycles. I hope you got the point. क्या पैसा कम इंटरेस्ट रेट वाली जगह से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाली जगह जाता है? एब्सोल्युटली, दिस इज़ हाउ इट फ्लोज. सो दिस इज़ हाउ मनी फ्लोज गाइज. हमेशा कंट्री 1, कंट्री 2, इट कुड बी एनी कंट्री, रिगार्डलेस इंडिया एंड अमेरिका, इट कुड बी एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. हर कंट्री में इंटरेस्ट रेट आगे पीछे ही होंगे. तो क्या ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं ये आर्बिट्राज करते हैं फॉरेक्स में? करते हैं फॉर सम टाइम. यस, इट्स डन. दे मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ दैट. राइट नाउ हाउ इट वर्क्स. एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जब भी किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट घटाए जाते हैं. घटाने का रीज़न ये रहता है ताकि मनी सप्लाई ज़्यादा हो. मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो ग्रोथ ज़्यादा होगी, एंड ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी. राइट. सो यहाँ पे सारे इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं. ऑल द इंटरेस्ट रेट, लोन रेट, बैंक सेविंग रेट्स, FD रेट, सब कम हो जाते हैं. ऑन कॉन्ट्रेरी देयर इज सेकंड कंट्री एज वेल लाइक इंडिया, जहाँ पे हमें ज़्यादा इन्फ्लेशन अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ज़्यादा इन्फ्लेशन हो तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो गेट टोपल्ड. सरकारें गिर जाती है ज़्यादा महंगाई से, तो हम चिल्लाने लग जाएंगे अरे सर बहुत महंगाई हो गई है, कहाँ पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे कॉलेजों में, लाइक दैट. राइट. सो वी नीड टू कर्व द इन्फ्लेशन, एंड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन मुझे आप सबसे पैसे खींचने पड़ेंगे. सो आई विल मेक द इंटरेस्ट रेट्स हाई. So all the interest rates in this country will be high. लोन रेट, बैंक रेट. तो यहाँ पे अगर बैंक का लोन 4% में है तो यहाँ 8% में है, तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से लोन लिया, यहाँ पैसे इन्वेस्ट कर दो. वेरी सिंपल. तो पैसा कहाँ गया? इस कंट्री से उठ के इस कंट्री में. सो दिस इज़ हाउ मनी सप्लाई विल कम फ्रॉम दिस कंट्री टू अनदर कंट्री. इसका फ़ायदा इस कंट्री को क्या है? व्हाट इज़ द बेनिफिट टू दिस कंट्री? दैट दिस कंट्री will not have that much inflation now, because money बाहर चला गया, डोमेस्टिक करेंसी थोड़ी सी डाउन आ गई, थोड़ी सी डेप्रिशिएट होगी. राइट. पीपल आर इन्वेस्टिंग आउटसाइड, तो नेचुरली इन्फ्लेशन कम हो गई, एंड दे विल गेट बेटर रिटर्न्स. क्योंकि यहाँ पे तो इनको कितना मिलता है? 2%. यहाँ पे देख लो ज़्यादा मिल रहा है. इंटरेस्ट रेट्स आर हाई. वो भी बैठे बैठे लोन लेना है, दूसरे कंट्री में लगा देना है. एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स दे डू दिस थिंग गाइस. राइट. ये नॉर्मल चीज़ है, ये होता है, हर कंट्री ऐसा करता है. इस कंट्री का फ़ायदा क्या था? दिस कंट्री वॉज अ पुअर नेशन. हमें पैसे की ज़रूरत थी, गरीब थे, हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, कितना कुछ करना है, हमें पैसा मिल गया बैठे बैठे. राइट. पैसा आएगा तो हमारे स्टॉक मार्केट ऊपर चलेगी, ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, हमारे ज़्यादा फैक्ट्रीज लग गई. सो मेनी थिंग्स आर कमिंग. गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया. सो इट इज़ अ बेनिफिट फॉर बोथ ऑफ देम. बट गाइज दिस लीड्स टू द करेंसी एप्रिशिएशन एज वेल. रुपी तो ऊपर चढ़ गया ना, बिकॉज पैसा मैंने कहा जहाँ जाता है जिस कंट्री में, द डायरेक्शन ऑफ द मनी वेर एवर इट गोज, इट इन्फ्लेट्स द थिंग. वो चीज़ बढ़ ही जाएगी हमेशा. तो यहाँ पे रुपी ऊपर चला गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस नाउ हमारे सेंट्रल बैंक बेचारे RBI को एक और टेंशन आ गई. वट इज़ द टेंशन? कि अब यार वो संभालना पड़ेगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. सो वी आर कमिंग टू डैट एज वेल. आई एम कमिंग टू डैट. बट आई होप यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द कंसेप्ट कि पैसा दुनिया में क्यों यहाँ वहाँ भाग रहा है. वाई मनी इज़ फ्लोइंग. इट जस्ट हवा जैसी चलती है. द मेन रीज़न ऑफ विंड इज़ ब्लोइंग, ब्रीज इज़ ब्लोइंग, द मेन रीज़न बिहाइंड दैट इज जस्ट हीट एंड कोल्ड. एक जगह गर्म, एक जगह ठंडा, तो गर्म ठंडा हवा चलती रहती है. सेम केस, इंटरेस्ट रेट एक जगह ज़्यादा, एक जगह कम, तो मनी कीप्स ऑन फ्लोइंग. राइट. दिस इज़ हाउ द कैपिटल फ्लोज इन द एंटायर वर्ल्ड. राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड हैव अराइज्ड इन योर माइंड, ये वाला हमने अभी तक एक कंसेप्ट किया है. डैट कंसेप्ट वॉज रिलेटेड टू व्हाट? मॉनेटरी पॉलिसी. इसकी वजह से पैसा पूरी दुनिया में जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज अ इमेंस रोल गाइज. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉनेटरी पॉलिसी फॉर एनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट. क्योंकि इसी से स्टॉक मार्केट हिलेगी, इसी से वर्ल्ड का कैपिटल मूव करेगा, इसी से फॉरेक्स मूव करेगा, एंड अब तो वॉर्स चल रही है तो डॉलर आपका गोल्ड भी उसी की वजह से हिलेगा. सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. अब अगला क्वेश्चन आता है, सर इंडिया में हम डॉलर क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं? वाई वी डोंट यूज़ डॉलर इन इंडिया? सबसे पहले क्या हम कर सकते हैं? इज़ गवर्नमेंट फ्री टू डू डैट? गाइज प्लीज़ टेल मी. अब ऐसा मत बोलना सर हम तो हिंदुस्तानी हैं, पैट्रियोटिक फीलिंग की हम तो अपना यूज़ करें, हम क्यों यूज़ करें डॉलर? सो कैन इंडियन गवर्नमेंट यूज़ इट? यूज़ कर सकती है क्या? रुपी बंद कर दो, क्यों इतनी टेंशन लेने गए?
Yes, we are free to do so. Okay. Yes, absolutely, guys. गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट कर सकती है. We can use US dollar. बट इसके पीछे वी हैव सम रेपरकशंस. अब हम रेपरकशन देखेंगे एंड देन विल गेट टू नो कि सर ये हो क्यों रहा है एंड व्हाट इज़ द रीज़न कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए, राइट. यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कंसेप्ट के साथ साथ एक कंसेप्ट और आएगा, डेट इज़ बिजनेस साइकिल कंसेप्ट. अब इसको ध्यान से समझना गाइस, आई वांट यू टू फोकस ऑन द स्क्रीन. इस चीज़ को पहले बोलते हैं डॉलराइजेशन, कि जब कोई और कंट्री डॉलर को यूज़ करना शुरू कर दे. अब ये टर्म डॉलराइजेशन मतलब ऐसे ही फ्लो में फैशन में अच्छी लग गई और यूज़ करने में स्टार्ट होगी. बट अदरवाइज इफ़ आई टेल यू, डॉलराइजेशन का जो मतलब होता है, द रियल मीनिंग ऑफ डॉलराइजेशन इज़ यूज़ ऑफ एनी करेंसी अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक. मतलब इंडियन रुपी के अलावा मैं कोई और किसी और कंट्री की करेंसी यूज़ करूँ तो उसको भी डॉलराइजेशन ही बोलते हैं. इट्स नॉट ओनली द डॉलर. मीन्स अगर कल नेपाल इंडियन रुपी यूज़ करना शुरू कर दे, so that is also dollarization, guys. But since dollar is famous, तो dollarization term मिल गई इस event को, इस phenomena को. But if some country uses the currency of some another country, then it is called as dollarization. अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, क्या ऐसा पहले हुआ है कभी? Absolutely. यूरोपियन यूनियन में ऐसा होता है. Means they use their own currency and they use euro as well. जिम्बाब्वे में अपनी करेंसी भी थी, डॉलर भी चलते हैं. फिर उन्होंने डॉलर ही एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरह से कि अब हम डॉलर ही यूज़ करेंगे. इक्वाडोर में भी ऐसा है, इक्वाडोर में उन्होंने डॉलर भी यूज़ किया. अब तो इक्वाडोर इज़ वन ऑफ द कंट्री जिन्होंने बिटकॉइन भी अलाउ कर दिया है. सो दे डोंट हैव देयर ओन करेंसी, उनकी खुद की करेंसी है ही नहीं. उनका दे हैव जस्ट वन करेंसी, आइदर डॉलर और बिटकॉइन. जस्ट इमेजिन इंडिया में ऐसा हो जाए तो. अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. अब समझना, इसको मैं आपको कैसे बता सकता हूँ. सी, आप दोस्ती कैसे लोगों से करना पसंद करते हो, अपने जैसे या अपने से ऑपोजिट. मीन्स आई एम नॉट सेइंग दैट यू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट, बट आई एम सेइंग आप किसके साथ दोस्त बनना ज़्यादा प्रेफर करोगे, कि आपके सेम माइंड लेवल का हो, सेम इकोनॉमिकल लेवल हो, सेम मतलब एवरीथिंग शुड बी सेम. वट यूज से सेम होना चाहिए ना. वैसे तो बोलते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, दैट इज़ अ डिफरेंट केस. बट यहाँ पे जो मेरा कंटेक्स्ट है बोलने का, कि आप दोस्ती अपने वालों से ही की जाती है, अपने लेवल वालों से, राइट. सेम गोज़ ओवर हेयर गाइज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अगर हम आज डॉलर यूज़ कर लेते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमारे हाथ से जाएगी, डैट इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रीडम. ये जो इंटरेस्ट रेट्स की बात हो रही थी, RBI डिसाइडेड टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, राइट. सो वो नहीं कर पाएंगे. अब मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका. और हमें वो फॉलो करने पड़ेगी, राइट. समझ गए? बिकॉज RBI का तो काम ही ख़त्म हो जाएगा. RBI का एक ही काम है, मॉनेटरी पॉलिसी. मीन्स वी विल लूज हैंड. चलो सर, मॉनेटरी पॉलिसी से हाथ चला भी गया तो क्या नुकसान है? अगर मॉनेटरी पॉलिसी से हाथ हम धो लिए, फॉर एग्जाम्पल वी डोंट मेक मॉनेटरी पॉलिसी एनी मोर, नाउ इट इज़ अमेरिका हु विल डिसाइड व्हेन टू प्रिंट द करेंसी. हम नहीं डिसाइड कर सकते. तो अगर अमेरिका ने डिसाइड किया प्रिंट करेंसी कर रहे हैं भाई, तो कर रहे हैं. इफ़ दे स्टार्ट प्रिंटिंग डॉलर्स टुडे, वी कांट डू एनीथिंग गाइस. हमारा तो सब हाथ से गया. दूसरा, ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स कभी भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बिकॉज डॉलर मीन्स दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन कंट्री. अमेरिका अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है या घटाता है. इफ़ अमेरिका इंक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट्स एंड डिक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट्स, राइट, अपने कंट्री को देख के वो ऐसे माइंड में नहीं रखेगा, अच्छा यार इंडिया में भी कोई विकास नाम का लड़का बैठा हुआ है या आरुषि नाम की कोई लड़की है, उसको भी माइंड में रखना है. नो, व्हाई वुड दे? वो अपने कंट्री के लोगों को देखेंगे. सो दे विल लूज द मॉनेटरी पॉलिसी थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. सॉरी, द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रीडम दे विल लूज, राइट. सर आपने कहा था यहाँ बिजनेस साइकिल आएगा, वो तो आया नहीं. आई होप यू गॉट द पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉनेटरी पॉलिसी से जो फ्रीडम लूज होगी उससे क्या नुकसान आएगा, अब आप यू विल गेट टू नो दिस थिंग. अनसर्टेन बिजनेस साइकिल्स. वेरी गुड भुवन, वेरी गुड. सर गवर्नमेंट जॉब भी काम हो जाएगी. ओके, सी गवर्नमेंट जॉब तो अमेरिका में भी होती है, ऐसा नहीं है, बट इट्स नॉट दैट हाइप ऑफ, देयर इज नो हाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन अमेरिका. इंडिया में थोड़ा वी फील दैट गवर्नमेंट जॉब इज़ गुड. सो चलो,
लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन गाइज. अब यहाँ पे ध्यान से समझना द कंसेप्ट, द कोर कंसेप्ट. देखो, यूएसए मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा अपने हिसाब से. यूएसए विल मेक द मॉनेटरी पॉलिसी थिंकिंग अबाउट यूएसए ओनली. गाइज आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन द स्क्रीन एवरीबडी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता है. मान लो यूएसए में रिसेशन आ गया, मान लो देर इज़ लो ग्रोथ, वेरी लेस ग्रोथ इन यूएसए, तो यूएसए की मॉनेटरी पॉलिसी कैसे होनी चाहिए. गाइज ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में भी डायरेक्ट पूछते हैं. इफ़ देर इज़ लो ग्रोथ व्हाट शुड गवर्नमेंट डू इन द मॉनेटरी पॉलिसी. सो यूएसए को एक्सपेंशन करनी चाहिए. इट शुड बी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों के पास जाए. तो कैसे जाएगा? इट विल प्रिंट मोर मनी एंड डिस्ट्रीब्यूट, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. ठीक है. दूसरा पैसा कैसे जाएगा? बैंक के रेट्स कम कर दो, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स, तो लोगों के पास पैसा जाएगा. गॉट द पॉइंट. बट जस्ट इमेजिन गाइज, उसी टाइम अगर इंडिया में इन्फ्लेशन हुई, व्हाट इफ़ यहाँ की बिजनेस साइकिल में रिसेशन है और इंडिया की बिजनेस साइकिल में इन्फ्लेशन है, तो इंडिया तो फट जाएगा. मीन्स देयर विल बी अ ब्लास्ट ऑफ इन्फ्लेशन. हाउ? यहाँ इन लोगों ने नोट छापा, मनी सप्लाई विल इंक्रीज, दैट मनी विल कम इन इंडिया. इंडिया में तो बहुत ज़्यादा महंगाई थी, और पैसा आ गया तो और महंगाई बढ़ जाएगी. इट विल ब्लास्ट गाइज. सी, यूएसए की मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई विल कम टू इंडिया, इट विल फर्दर इंक्रीज द इन्फ्लेशन. हमें चाहिए थी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी. हमारे आरबीआई क्या करता, इन्फ्लेशन के टाइम में कॉन्ट्रैक्शन करता, मनी सप्लाई कट कर देता, बैंकों के रेट्स बढ़ा देता, तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल आ जाती. बट यहाँ तो हमारे पास पावर चली गई थी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की. वी वर फॉलोइंग यूएसए. तो यूएसए में था उस टाइम रिसेशन, उन्होंने पैसा छापा, दैट मनी केम टू इंडिया एंड यहाँ देयर इज अ ब्लास्ट. नाउ दिस इन्फ्लेशन विल गो आउट ऑफ हैंड गाइज. दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू दैट हमेशा दोस्ती सेम लेवल वालों से ही करनी चाहिए. एंड द सेम केस इज़ एप्लीकेबल इन दिस कंसेप्ट. हमें दोस्ती सेम बिजनेस साइकिल वाले कंट्री से ही करनी चाहिए गाइज. अगर बिजनेस साइकिल अलग अलग हुए कंट्रीज़ के, देयर विल बी अ ब्लास्ट. एक कंट्री या दूसरा कंट्री फट जाएगा, या तो इन्फ्लेशन से, या डिप्रेशन में, या रिसेशन में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, कमिंग टू दिस. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है. मीन्स एवरीवन इज़ ग्रोइंग. फेसबुक, मार्क जकरबर्ग, टेस्ला, सब बढ़िया बढ़िया सब कुछ चल रहा है वहाँ पे. हाई इन्फ्लेशन, ग्रोथ ज़्यादा हो तो हाई इन्फ्लेशन होती ही है. ये सब भाई भाई हैं, ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई. ये तीनों इकट्ठे चलते हैं, राइट. नाउ इफ़ द मनी सप्लाई वॉज वेरी हाई, तो अब अमेरिका यहाँ क्या करता? अमेरिका को रोकना पड़ता मनी सप्लाई, तो अमेरिका अब सबसे पैसे खींच लेता. सो यहाँ पे आई कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी. अमेरिका ने प्रिंटिंग बंद कर दी, अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और मनी सप्लाई हो गई कम. बट जस्ट इमेजिन गाइज, उस टाइम अगर इंडिया में रिसेशन आया होता और ग्रोथ लो होती, तो हमें क्या ज़रूरत थी? ज़्यादा मनी सप्लाई की. हमें ज़रूरत थी एक्सपेंशनरी पॉलिसी की. पर अब आरबीआई तो है नहीं, तो हमें यही फॉलो करना पड़ेगा व्हाट यूएसए वाज डूइंग. व्हाट वुड हैपन? वी नीडेड टू प्रिंट मोर करेंसी, वी नीडेड लेस इंटरेस्ट रेट्स. बट यहाँ पे प्रिंट करेंसी है ही नहीं मार्केट में. द मनी इज़ गोइंग बैक फ्रॉम द कंट्री. यहाँ पे इस तरफ था एरो, यहाँ पे एरो उल्टा हो जाएगा. बिकॉज ऑफ डैट इंडिया और ज़्यादा लो ग्रोथ में जाएगा. इट कुड लीड टू रिसेशन, इट कुड लीड टू डिप्रेशन. सी, गाय स्टैंडिंग इन अ डिच, सो इट विल बी अ डिच फॉर इंडिया गाइज. उठना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. I hope you're getting the point, everybody. So the business cycle should be same, guys. That is why we can't use just like any currency in the world. हाँ, अगर business cycle same हुआ तब बहुत माथापच्ची बच जाएगी. मॉनेटरी पॉलिसी की टेंशन ख़त्म, करेंसी प्रिंट करने की टेंशन ख़त्म, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब टेंशन ख़त्म, एक्सचेंज रेट की टेंशन ख़त्म. बट गाइज इट इज़ ओनली पॉसिबल when USA and India, or when both the countries should have similar business cycles. I am repeating myself again. ट्रेड उसी कंट्री के साथ किया जाता है whenever the business cycle is same, और capital flow is good only when the business cycles are same. So that is why business cycle is very important. Guys, I hope you are with me.
देवशीष बिजनेस साइकिल मतलब रिसेशन, एक्सपेंशन, जो फेजेस आते हैं ना साइकिल में, वो बोल रहा हूँ मैं। कहीं रिसेशन होगा, कहीं डिप्रेशन होगा, कहीं एक्सपेंशन होगा, कहीं पीक होगी, सो लाइक दैट। सर यस सर, अमेरिका डेवलप नेशन, इंडिया डेवलपिंग नेशन। चलो इसका भी आई विल बी गिविंग यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस। चलो ये आते हैं। बिफोर डैट आई वुड लाइक टू गिव यू वन स्मॉल एग्जाम्पल। वर्ल्ड यूरोप मैप। सो गाइस दिस इज़ यूरोप। आपने देखा होगा यूरोप में यूरोपियन यूनियन नाम की चीज़ आपने सुनी है, राइट? वाई यूरोपियन यूनियन इज़ सो फेमस, सो इम्पॉर्टेंट? ये सारे के सारे कंट्रीज़, ये मैं पढ़ाऊँगा आपको ऐसे, बट मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, यूरोप में ना सारे ये भाई भाई की तरह रहते हैं। दे लिव लाइक अ, हालांकि आपस में बहुत इनकी है अंदर से, दे डू हैव ग्रजेस फॉर ईच अदर, बट दे लिव टुगेदर। रीज़न बिहाइंड दिस, दे हैव द सिमिलर बिजनेस साइकिल गाइज, तभी ये लोग एक हो पाए हैं। दे हैव वन करेंसी, दे हैव वन सेंट्रल बैंक। हैरानी होगी आपको, ये सारे के सारे कंट्रीज़ देखने में अलग अलग हैं, दे आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट सॉवरेनिटी, बट यहाँ पे दे हैव वन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक। अपने अपने तो हैं इनके, लेकिन एक सेंट्रल बैंक बनाया जो सबका इकट्ठा है। सेकंड, दे हैव वन करेंसी गाइज, दे हैव सेम बिजनेस साइकिल। अगर यहाँ पे किसी कंट्री की बिजनेस साइकिल थोड़ी ऊपर नीचे हो, वो तो अपना इंटरेस्ट रेट घटा देगा, सारा का सारा पैसा वहीं चला जाएगा फिर। तो इन्होंने सारी की सारी बिजनेस साइकिल्स मेंटेन करके रखी हैं। दे हैड, आई एम कमिंग टू पाउंड्स एज वेल, ब्रेग्जिट हुआ था, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट जस्ट गाइज इमेजिन दिस थिंग, दीज पीपल आर क्लेवर, दीज पीपल आर स्मार्ट। इंडिया पाकिस्तान चाइना की तरह नहीं लड़ रहे हैं आपस में, बिकॉज फाइट इज़ नॉट, if you fight there is no growth, right, in that region. So they have grudges but they stopped fighting, they know लड़ाई से कोई growth नहीं होगी. So the reason is they have same business cycles, right, they have same currency, they have same one central bank, सारों का एक central bank है। ताकि अदरवाइज़ क्या होता, फ्रांस में अगर ग्रोथ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो पैसा तो फ्लो कर जाता है जर्मनी से फ्रांस, या फ्रांस से स्पेन, तो पैसा तो एक यहाँ से वहाँ भागता ही रहता। तो इन्होंने कैपिटल फ्लो ही कंट्रोल कर लिया। लो सारे के सारे ग्रो करेंगे तो इकट्ठे करेंगे, नहीं तो सारे के सारे जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। हाँ, इसका नुकसान ये है कि अगर गड्ढे में जाएंगे तो सब इकट्ठे ही जाएंगे। अरे नेटो ऋषिकेश, नेटो इज नॉट अ इकोनॉमिक टाई, नेटो इज अ मिलिट्री टाई। यूरोपियन यूनियन इज एन इकोनॉमिक टाई। नेटो का मतलब है हम सब मिलेंगे, कोई हमसे लड़ाई करेगा तो हम सब मिल के मारेंगे उसको। यूरोपियन यूनियन इज़ फॉर इकोनॉमिक, मीन्स बिजनेस बड़ा करना है, ट्रेड करना है, अमीर बनना है। यू गेटिंग द पॉइंट गाइज? ओके, प्रियांश वेरी गुड क्वेश्चन कि करेंसी कौन प्रिंट करता है। सी गाइज, वहाँ पे ना वोटिंग होती है, देयर इज़ अ वोटिंग, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, उसको अलग परसेंटेज का शेयर होता है, फिर जैसे जैसे वोट दिए जाते हैं वैसे वैसे मॉनेटरी पॉलिसी बनती है, राइट। सर से अबाउट पाउंड्स, सी हर कंट्री की अपनी करेंसी तो थी, एवरी कंट्री वॉज हैविंग देयर ओन करेंसी, बट ओवर एंड अबव ऑफ दैट दे एक्सेप्टेड अ कॉमन करेंसी एज वेल। इट्स नॉट कि यूरो ही है, यूरो के साथ फ्रांस का फ्रैंक है, जर्मनी की अपनी करेंसी है, ब्रिटेन की अपनी करेंसी थी, लेकिन इन्होंने सबने एक्सेप्ट की कि हम यूरो भी एक्सेप्ट करेंगे, वन कॉमन करेंसी। गेटिंग द पॉइंट? ऐसा नहीं है कि वहाँ पे यूरो ही चलता है, पहली बात। दूसरी बात, ब्रिटेन अब अलग हो गया है गाइज, ब्रिटेन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, इट वॉज अ बिग न्यूज़, ब्रेग्जिट बोलते हैं उसको, एंड ब्रिटेन वहाँ से निकल गया है बाहर। हाँ, दे डोंट हैव द नेबर्स लाइक पाकिस्तान। अरे सो इंडिया पाकिस्तान आर नॉट फाइटिंग बिकॉज वी डोंट वांट टू फाइट। चलो उसमें हम बाद में रहेंगे। चलो, यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी, एनी डाउट्स टिल नाउ? अब आते हैं बेचारा सेंट्रल बैंक। दिस सेंट्रल बैंक इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, टू बी वेरी ट्रूथफुल गाइज। आप इस सेंट्रल बैंक को देखो, जस्ट सी ओवर हियर, एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू, ठीक है, यू आर द बेटर जज, सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? बिकॉज अब मैं एक्सचेंज रेट्स में आने वाला हूँ फॉर द बेटर एक्सप्लेनेशन। एक सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए? मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करे बेचारा, ठीक है,
तो मान लो अगर कभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी ले आएगा, उस इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगी। चलो बहुत अच्छा है सर। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए गाइज तो फ़ौरन का सारा पैसा इंडिया में आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर मान लो इंडिया में इन्फ्लेशन होती है, जस्ट इमेजिन टुडे, आज बहुत महंगाई होगी इंडिया में, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो सारे हम लोग पैसा डाल देंगे बैंक में और हमारे पास पैसा नहीं है तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। बट इससे एक और रेपरकशन आएगा, फॉरेन वाले सारे भाग के आ जाएंगे इंडिया में कि इंडिया में रेट ज़्यादा है, वहाँ पैसा लगा लो। तो मनी सप्लाई तो फिर भी बढ़ ही रही है। फिर अब सेंट्रल बैंक को बेचारे को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी हैंडल करना पड़ेगा। आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्लाइड दैट वेन एवर द money exports, this will happen, right? Money supply is coming like this, right? The exports will decrease and imports will increase because of this. Now अब इसको ये भी हैंडल करना पड़ेगा। Now coming to next question, मान लो इंडिया में ग्रोथ बहुत नीचे है, जॉब्स हैं नहीं, मनी सप्लाई बहुत कम है। नाउ सेंट्रल बैंक व्हाट वुड इट डू? सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट रेट घटाएगा, जो अभी अभी हुआ है गाइस रिसेंटली। इंडिया में आपने देखा होगा गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं, घर बिक नहीं रहे हैं। आपका HUL के द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीम ऑफ HUL, उन्होंने कहा हमारा शेयर प्राइस इसलिए ऊपर नहीं जा रहा बिकॉज पीपल आर नॉट बाइंग डे टू डे FMCG प्रोडक्ट्स, जो पैसे नहीं है लोगों के पास। तो इसका मतलब ग्रोथ लो थी, मनी सप्लाई कम थी, तो इन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स भी घटा दिया और आपके इंटरेस्ट रेट्स भी घटा दिए। अब इसके रेपरकशन क्या हुआ, सारे फॉरेन वाले पैसा लेके भागे बाहर, अगेन वेरी स्ट्रेंज, और रूपी गिर गया धड़ाम से। अब मुझे आप बताओ, आई वॉन्ट यू टू आंसर मी दिस क्वेश्चन, अब सेंट्रल बैंक बेचारा क्या क्या संभाले, पॉलिसी संभाले कि पॉलिसी चलो कर दी तो ये संभाले, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज चलो ये भी हैंडल कर लिया, तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट संभाले। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर अ सेंट्रल बैंक गाइज, जस्ट इमेजिन। यू टेल मी, क्या दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट शुड अ गुड सेंट्रल बैंक डू? एंड अ गुड सेंट्रल बैंक शुड कंट्रोल एक्सचेंज रेट्स, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स। और अमेरिका का सेंट्रल बैंक तो मैं एक और चीज़ बताया, तो वो जॉब्स भी कंट्रोल करता है। बेचारे के पास एक और काम है कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक के पास दो काम है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी एंड जॉब्स। ऑल विल बी वेरी गुड रिशू, ऑल विल बी वेरी टफ, मीन्स कितना सारा काम बढ़ जाएगा। सैलरी भी तो नहीं है ना रिशू, मजाक कर रहा हूँ। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल ऑल ऑफ देम। विकास इज सेइंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दे कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस पॉलिसी। चलो अब इसमें आते हैं हम लोग, यू विल गेट दिस आंसर इन एक्सचेंज रेट्स। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट क्यों करते हैं, दिस इज़ अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, एंड बीइंग अ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्टूडेंट यू शुड बी नोइंग व्हाई डिफरेंट एक्सचेंज रेट एग्जिस्ट, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स। कहीं रिसेशन है तो कहीं पीक है, कहीं कॉन्ट्रैक्शन है, कहीं एक्सपेंशन है, सो दे विल हैव डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसीज़। सो डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसीज़ मीन डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स, तो पैसा फ्लो करेगा यहाँ से वहाँ, जहाँ जहाँ पैसा जाएगा वो करेंसी ऊपर, जहाँ पैसा निकला वो करेंसी नीचे। वेरी सिंपल। सो बिजनेस साइकिल्स एंड मॉनेटरी पॉलिसीज आर द रीज़न बिहाइंड दैट, राइट। इसके आगे आएंगे, द नेक्स्ट इज वेर एवर देर इज़ इन्फ्लेशन, वो अपना इंटरेस्ट रेट हाई करेगा तो लो इंटरेस्ट रेट से हाई इंटरेस्ट रेट में पैसा जाएगा। सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ कैपिटल फ्लो एज वेल। इस चीज़ को क्या रिस्ट्रिक्ट करती है गवर्नमेंट? यस, गवर्नमेंट ट्राइज टू रिस्ट्रिक्ट इट। ज़्यादा भी FII इंडिया में आएगा, डेट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बिकॉज इससे स्टॉक मार्केट बबल क्रिएट होता है, इट क्रिएट्स अ बबल, राइट। जैसे मैं आई गेव यू एन एग्जाम्पल ऑफ मलेशिया, आई वॉन्ट यू टू रिसर्च अबाउट मलेशिया, दिस वॉज साउथ एशियन क्राइसिस बोलते हैं इसको। तो वहाँ पे इट क्रिएटेड अ बबल गाइज, फटा तो सारा का सारा धड़ाम से क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश, इन्फ्लेशन रेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, बहुत मुश्किल हो गया था उन्हें कंट्रोल करना, राइट। सो अब गुड्स एंड कैपिटल ये हम आने वाले उसमें करेंगे, बट आई होप दिस इज क्लियर टू यू राइट नाउ। अब आते हैं एक्सचेंज रेट्स गाइस, ठीक है। एक्सचेंज रेट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहले ये वाला आ गया क्या? गाइस जस्ट रिमाइंड मी कि ये वाली स्लाइड हम बाद में करने वाले हैं, ये पहले आ गई है, राइट। सबसे पहले द थिंग दैट वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग ओवर हियर इज, तीन तरह के एक्सचेंज रेट्स होते हैं, और जिसमें जो सबसे ट्रिकी है दैट इज़ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। फिक्स्ड
सबसे पहले आते हैं तीन तरह के कौन कौन से हैं। वैसे तो देयर 12 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स, डिफरेंट एक्सचेंज रेट स्ट्रेटजीज एंड एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। बट अगर मैं इन सबको समराइज़ करूँ, इफ आई समराइज ऑल दोज 12, तो उसमें दो तीन एक्स्ट्रा हैं, वो मैं अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा। बट दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चंस में भी सबसे ज़्यादा आते हैं। नंबर 1 इज़ फिक्स्ड, राइट। नंबर 2 इज़ फ्लोटिंग एंड नंबर 3 इज़ मैनेज्ड फ्लोट। फिक्स्ड का मतलब होता है जब सेंट्रल बैंक किसी कंट्री का, whenever the central bank of the country fixes a interest exchange rate। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं पहले व्हाई इन इंडिया, सी अमृत, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि चाइना से हम एफडीआई क्यों नहीं अलाउ करते। देयर आर फ्यू स्ट्रेटेजिक थिंग्स बिहाइंड दैट। जैसे मान लो देयर आर फ्यू स्ट्रेटेजिक सेक्टर, वैसे तो एफडीआई अलाउड है चाइना से। वाईजूज में कितना पैसा लगा चाइना का, एफडीआई इज़ अलाउड, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड, राइट। हाँ, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है कुछ सेक्टर्स में। जैसे नंबर 1 सेक्टर इज़ डिफेंस। मान लो पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी, हम अगर चाइना से एफडीआई करते डिफेंस में, हमारी मिसाइल भेजी, मिसाइल फटी नहीं, फिर प्लेन भेजा, प्लेन वापस आ जाए, फिर मीन चाइना कैन कंट्रोल दीज थिंग्स ना। सो जो स्ट्रेटेजिक आपके सेक्टर्स होते हैं उसमें एफडीआई अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ से बैठे बैठे चाइना तो कुछ भी कर सकता है। फिर डिफेंस में पता लगे टैंक भेजा, टैंक का सर्किट ही फेल कर दिया चाइना ने वहाँ बैठे बैठे रिमोट से। सो लाइक दैट थिंग्स कैन हैपन। मोबाइल फ़ोन्स नहीं अलाउ कर रहे ज़्यादा चाइना के, कि चाइना वहाँ बैठे बैठे हमारे सारे मोबाइल फ़ोन्स को इकट्ठा डिसमेंटल कर सकते हैं वहाँ से। दे कैन सेंड अ सॉफ्टवेयर जिससे सारा का सारा सिस्टम हैक हो सकता है। सो वी डोंट वांट कि क्रिटिकल टाइम में चाइना हमारे ऊपर ओवर पावर कर जाए। सो दैट्स वाई एफडीआई इज़ नॉट 100% अलाउड, राइट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सी फिक्स्ड मॉनेटरी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स में क्या होता है, इसको ध्यान से सुन लो गाइस, यही सबसे ट्रिकी है, बाकी बहुत आसान है। जो सेंट्रल बैंक होता है किसी कंट्री का, वो एक प्रॉमिस करता है, प्रॉमिसेस, कि मैं $1 के बदले आपको 10 हांगकॉन्ग डॉलर दूंगा। जैसे आपने 500 रुपये का नोट निकाला होगा या 100 रुपये का, उसमें भी लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपये वैल्यू देने का वचन देता हूँ। आई विल प्रॉमिस to the bearer that I will give the value of 10 rupee, 100 rupee, 500 rupee in our Indian rupee notes as well. So over in these countries जहाँ पे ना एक्सचेंज रेट फिक्स होता है, मीन्स इट्स नॉट फ्लक्चुएटिंग, वो फिक्स कर देते हैं कि हमारे 10 हांगकॉन्ग डॉलर $1 के बराबर होगा, फिक्स है जी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड और पैक्ड करेंसी टाइप्स। एक्सचेंज रेट इसमें फिक्स हो जाता है। It's 1 o'clock. बट इसमें एक नुकसान ये है, and it's a promise guys, it's a promise given by the central bank, it is a promise given by the government of that country, it's a sovereign promise, इसको तोड़ नहीं सकते। अब क्या होगा, जब जब इनको ये डॉलर्स प्रिंट करने पड़ेंगे, हांगकॉन्ग डॉलर फॉर एग्जांपल, इनको बैकअप रखना पड़ेगा डॉलर का, अमेरिकन डॉलर का। वाई आई एम सेइंग दिस, मीन्स दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे पहले टाइम में होता था ना कि मैं 500 रुपये का नोट अगर छापता हूँ तो 500 रुपये के इक्वलेंट गोल्ड मेरे को रखना पड़ता था, इट वाज इक्वलेंट करेंसी प्रिंटिंग। पर अब वो इक्वलेंट वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। लेकिन इस वाले में क्या रहता है, वेन एवर यू प्रिंट $10 ऑफ हांगकॉन्ग, यू हैव टू बाय $1 ऑफ यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, एज अ बैकअप, प्रोपोर्शनल। तो इसमें आपको 100% फॉरेक्स बैकिंग होती है, इट इज़ मोर सिक्योर, राइट। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। जितनी जितनी करेंसी प्रिंट होगी उतना उतना आपको फॉरेक्स यूएस डॉलर या फॉरेन करेंसी खरीदने पड़ेगी। यू हैव टू मेंटेन इट एज अ बैकअप। सो एज सच इट इज़ गुड। बट अब आप इसका आगे का सुना, या प्लेज इज़ गुड वर्ड, बट सॉवरेन प्रॉमिस होता है, सरकार का प्रॉमिस है। मतलब कल को गौरव आप उठ के जाओ, आपका मन हो गया अरे यार मुझे ना 10 हांगकॉन्ग डॉलर के बदले एक अमेरिकन डॉलर मिल जाए, अपन अमेरिका जाके एंजॉय करके आएंगे, तो आपको सरकार मना नहीं कर सकती, डैट वी वॉन्ट गिव यू। हाँ, अभी आप आरबीआई के पास जाओगे तो आरबीआई वाले मना कर सकते हैं, भाई हम नहीं दे सकते 500 बदले के आपके डॉलर, या 500 के बदले, बिकॉज इट्स नॉट अ प्रॉमिस, मीन्स प्रोमिस कैन बी ब्रोकन, बिकॉज हमारा कोई और सिस्टम है। बट इस सिस्टम में इट इज़ अ सॉवरेन प्रॉमिस। प्रॉमिस टूटा मतलब सरकार ने गलत किया, तो कंट्री क्रैश हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ गुड टाइम्स में तो बहुत अच्छा है। वाई, अब फॉर एग्जाम्पल आरुषि इंडिया में बैठी है, आरुषि सोचा यार मैं ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करती हूँ,
तो कभी प्राइजेज हैं $10, कभी $10-11, कभी $9, कभी इंडियन रुपी 80 में है, कभी 70 रुपी पर, मतलब फॉर $1 इंडियन रुपी समटाइम 70, समटाइम 80, कितनी फ्लक्चुएशन है। तो कभी भी ये सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर इशू करेगी बेचारी, सो द प्राइजेज विल ऑलवेज कीप फ्लक्चुएटिंग। ये तो टेंशन में, अरे यार आज मैंने ख़रीदा कल रुपी क्रैश हो गया, मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रॉफिट ही कम हो गए। सो इसमें वो फिक्स है, देयर इज़ नो फ्लक्चुएशन। $1 इज इक्वल टू 10 हांगकॉन्ग डॉलर, ये फिक्स है। सो वो टेंशन खत्म माइंड से कि फ्लक्चुएशन होगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, राइट। IT कंपनीज फेस द सेम इशू। अब इससे इंटरनेशनल ट्रेड करने को आसान हो जाता है, इट इज़ ईजी टू डू, एंड दिस इज़ मोर डिसिप्लिन। हाँ, ये ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। वाई? बिकॉज आप फ्री में पैसा छाप नहीं सकते, गवर्नमेंट ऐसा पैसा छाप नहीं सकती, गवर्नमेंट को बैकिंग रखनी ही पड़ेगी। तो गवर्नमेंट, अगर मान लो कल को कुछ बुरा हो जाता है, तो गवर्नमेंट के पास कितने USD एज फॉरेन रिजर्व रखा होगा कि उसको बचाया जा सके। तो एज सच ये ठीक भी है। लेकिन गाइस, अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दूंगा बैड टाइम्स का। नाउ लेट्स गिव यू एन एग्जांपल, ये इमेजिनरी एग्जांपल है एज सच। जैसे मान लो अभी पाकिस्तान की जो हालत है, सो लेट्स सी द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। तो मान लो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है वो प्रॉमिस करता है आज कि जी हम 30 रुपये के बदले अपनी आवाम को, अपनी सिटीजन्स को $1 गिफ्ट कर देंगे। कल को अगर फॉर एग्जांपल अमित, जस्ट डोंट माइंड, यू आर, आई नो वी ऑल आर इंडियंस, बट जस्ट फॉर दिस थिंग, अमृत यू आर अ पाकिस्तान सिटीज़न, आपका मन हो गया यार मैं जाना चाहता हूँ अमेरिका घूमने, तो अपने 30 रुपये दो सेंट्रल बैंक को, $1 लो और घूमने चले जाओ। बट फॉर एग्जांपल धीरे धीरे पाकिस्तान में रिसेशन बढ़ गया, ग्रोथ और ख़राब हो गई, एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी वेरी लो, परचेजिंग पावर करेंसी की एकदम से नीचे गिर गई। तो इनसाइड रियलिटी में क्या होना चाहिए था ना, पहले $1 30 था, फिर 90, फिर 150, फिर 200, ऐसे ही गिरता है डॉलर नॉर्मली। मतलब हमारे इंडिया में तो ऐसे ही हो रहा है, राइट। पहले 50 था, देन 60, देन 70। बट यहाँ पे देयर वॉज अ प्रॉमिस गाइज। तो पाकिस्तान वालों ने इसको पकड़ के रखा, सरकार ने, कि हम तो भाई इसमें टिक के रहेंगे, $1 इसको 30 रुपये। तो जब सच बोलूँ, जैसे अभी पाकिस्तान में खरीद, द परचेजिंग पावर ऑफ द पाकिस्तानी रुपीज़ ऑल टाइम लो। जो आटा है वहाँ पे, आटा चावल, दैट इज़ 800 रुपये पर के जी, इट्स मीन परचेजिंग पावर इज गॉन, हैव गॉन ऑल टाइम लो राइट नाउ। तो लोग क्या करेंगे, अरे जब 30 रुपये में $1 मिल रहा है तो लो और फ़ौरन चले जाओ। मतलब सच में वैसे इन रियलिटी इस 30 रुपये की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, गवर्नमेंट इज जस्ट होल्डिंग ऑन इन रॉन्ग वे। तो वट वुड हैपन, पीपल विल एक्सचेंज द रुपी एंड दे विल फ्लाई आउट ऑफ द कंट्री। सो इससे क्या होगा, इन बैड टाइम, इन रिसेशन टाइम, एक तो गवर्नमेंट प्रिंट नहीं कर पाएगी और पैसा, बिकॉज गवर्नमेंट ने प्रॉमिस दिया था कि हम डॉलर को बैकिंग रखेंगे, और गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है डॉलर खरीदने के लिए, एंड प्रिंट करने के लिए भी पैसे चाहिए इनको डॉलर खरीदने के लिए। तो ये इस लूप में फंस जाएंगे, सो दे कांट प्रिंट मोर करेंसी नाउ। अब पैसा गवर्नमेंट के पास ख़त्म, बिकॉज इट वॉज अ सॉवरेन प्रॉमिस। अब प्रॉमिस कर दिया था तो जितने भी लोग हैं वो गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे कि हमारे बदले में डॉलर वापस करो। सो गवर्नमेंट इस लूप में फंस जाएगा that they can't print currency and they can't give to the people as well. So it will be a loop and they will get stuck, and because of this will go out of hand guys, and out of country people will go and they will leave the country, they will sell the Pakistani rupee or they will sell the Hong Kong dollar। बदले में $1 मिलेगा, $1 की परचेजिंग पावर तो सेम ही है पूरे वर्ल्ड में, वो अपना खर्चा खुर्चा करके फिर से वापस आ जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ, सी आर्बिट्राज ना हो नहीं पाता है वैसे करेंसीज में, ये इट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। बट दिस कंसेप्ट आई गेव यू टू अंडरस्टैंड कि वाई फिक्स्ड करेंसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ करेंसी, राइट। अभी आर्बिट्राज में आएंगे, बिकॉज जो आर्बिट्राज वाला कंसेप्ट है डेट इज़ बिट डिफरेंट, वो हो नहीं पाता है, आई टेल यू। सो हेयर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक्स आर कंट्रोलिंग द एक्सचेंज रेट्स, मतलब ये फिक्स कर देते हैं विद अ सॉवरेन प्रॉमिस गाइज। एनी डाउट्स ऑन दिस? दिस इज द ओनली थिंग दैट इज ट्रिकी, आगे वाला तो बहुत आसान है। एनी डाउट्स ऑन दिस गाइज कि वाई गवर्नमेंट शुड नॉट फिक्स दिस थिंग? क्योंकि अगर ये गिरेगा तो फिर गवर्नमेंट ही क्रैश होगी डायरेक्ट, मीन्स इट देयर विल बी ए क्रैश फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रेट अवे। मतलब ये धड़ाम से गिरेगा, इसको मतलब गवर्नमेंट ने पकड़ के रखा था, गवर्नमेंट छुपा के रख रही है, छुपा के रख रही है, नथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग ऑन, नथिंग रॉन्ग इज़ गोइंग ऑन। पर जब गवर्नमेंट के हाथ से गाड़ी निकल गई तो ये फिर सीधा इतने में आएगा, $1 इज इक्वल टू 100 रुपये। तब तक ये जो बेचारी आरुषियाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही थी उसका तो बिजनेस ही फेल हो जाएगा, इट विल ब्लास्ट, राइट। सो दिनेश इज सिंह प्लीज़ वन मोर सर, वंस मोर। सी गाइज, जब भी गवर्नमेंट, चलो एक बार इसमें वापस आएंगे।
आपको फॉर बेटर क्लैरिटी सेकंड वाला पढ़ते हैं। सेकंड है फ्लोटिंग सिस्टम। फ्लोटिंग सिस्टम होता है जितना खरीदा, जितनी डिमांड उतना प्राइस करेंसी ऊपर जाएगी, जितनी डिमांड नीचे उतनी करेंसी नीचे गिरती जाएगी। सो दिस इज़ ड्रिवन बाय मार्केट्स फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मतलब जितनी डिमांड एंड सप्लाई है उतना ऊपर, नहीं तो नीचे। मतलब यूएस जो फॉरेन का आपका यूरोप के यूरो है और आपका यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, सो दीज दे फॉलो फ्लोटिंग करेंसी रेट्स। यहाँ पे ये खुद होता है नेचुरली, गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग इन दिस। ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, ऑटोमेटिकली नीचे जाता है, एज पर द मार्केट फोर्सेज, एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। नो वन इज़ डूइंग एनीथिंग ओवर हेयर, राइट। तो यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है बिल्कुल फ्री है। वाई फ्री है? बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल बैंक को कितना काम करना पड़ रहा है। देखो, लेट मी कम ओवर हेयर। ये वाली कहानी आ गई ना। सेंट्रल बैंक फिक्स्ड वाले में क्या कर रहा है, इस चीज़ को संभालने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी से हाथ धो बैठ रहा हो, मीन्स दे कांट कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी इन ए गुड वे। क्योंकि सेंट्रल बैंक किसको पकड़ के बैठा है, $1 इज इक्वल टू 1 रुपी, $1 इज इक्वल टू 20 रुपी, लाइक दैट। तो सेंट्रल बैंक को इसको कंट्रोल करना पड़ रहा है, बहुत एनर्जी इसमें लग रही है सेंट्रल बैंक की। बिकॉज ऑफ डैट कंट्री की जो इन्फ्लेशन है, कंट्री की जो ग्रोथ है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। ऑन कॉन्ट्रेरी इंडिया और अमेरिका में क्या है, हम लोग इसको कंट्रोल नहीं करते, वी डोंट कंट्रोल दिस थिंग। ये नेचुरली चलने दो यार, ऊपर जा रहा है ऊपर जाए, नीचे जा रहा है नीचे जाए, डैट्स हमें नहीं इसकी टेंशन। तो इंडिया में हम लोग सिर्फ इसको कंट्रोल करते हैं, वी जस्ट कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी गाइज। सो सेंट्रल बैंक के ना अलग अलग कंट्री में अलग अलग फोकस है। इन इंडिया वी फोकस ऑन दिस, वी डोंट फोकस इन दिस। इन अमेरिका वी फोकस ऑन दिस, वी डोंट फोकस ऑन दिस। बट इन चाइना दे फोकस ऑन दिस, वो इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, दे डोंट फोकस ऑन दिस। ये भी करते हैं बट ज़्यादा एनर्जी उनकी इसी में जा रही है। गाइज विद मी एवरीबडी? हाँ, आई एम जस्ट मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई। ओके, नाउ कमिंग टू सी, यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट इकट्ठे चल रहे हैं गाइज। सो दैट्स वाई इट्स बिकमिंग बिट कि ये सब कैसे हो रहा है। अब आते हैं मैनेज्ड फ्लोट, ये इंडिया में फॉलो होता है। यूएसए में तो बिल्कुल फोर्सेस का काम है, बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई सेंट्रल बैंक नहीं। इंडिया में फिर भी वी हैव, सी इंडिया में वी हैव ऑल द थिंग मिक्सड। हमारी इकोनॉमी भी मिक्सड है, मिक्सड ऑफ कैपिटलिज्म, मिक्सड ऑफ सोशलिज्म, मिक्सड ऑफ नेशनलिज्म, सबका मिक्सचर है। इंडिया में जो करेंसी हम संभालते हैं वो भी मिक्सड है, मिक्सड ऑफ फिक्स्ड, मिक्सड ऑफ फ्री फ्लोट। हाउ? देखो, ये ऐसे है कि हम लोगों ने छूट दे के रखी है, इसको मैं इसी में समझाता हूँ। इंडिया वी यूज मैनेज्ड फ्लोट। वाई इट इज़ कॉल्ड एज मैनेज्ड फ्लोट इन इंडिया? इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो बेचारा बहुत शरीफ है, वेरी नाइस। और कितने तो सेंट्रल बैंक के हमारे गवर्नर्स दे रिज़ाइन बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस। इंडिया में हम क्या करते हैं, वी कंट्रोल दिस थिंग जर्नली गाइज, ठीक है। लेकिन जब जब रुपया बहुत गिरता है या जब जब बहुत ऊपर जाता है तो बेचारा आरबीआई ही है जो उसको थोड़ा सा बचा लेता है, मीन धड़ाम से नहीं गिरने देते। आरबीआई का जो मेन रोल है, दे डोंट वांट एब्रप्ट मूवमेंट। एब्रप्ट नहीं होना चाहिए, कुछ फास्ट नहीं होना चाहिए। स्लो स्लो गिरे, गिरने दो। फास्ट फास्ट ऊपर जाए वो पॉसिबल नहीं है। स्लो गिरे इट्स फाइन, फास्ट धड़ाम से नहीं गिरना चाहिए ताकि देश में झटका ही ना लग जाए। सो व्हाट दे डू, ये गिरने देते हैं पर थोड़ा थोड़ा। ये डॉलर खरीद लेते हैं या रुपीज़ खरीदना शुरू कर देते हैं ताकि रुपये की डिमांड फिर भी बनी रहे, थोड़ा सा धीरे गिरे, गिरेगा लेकिन धीरे। हमारा फोकस इसी में ही रहता है सारा, वी फोकस ऑन दिस ओनली गाइज। बट द ओनली थिंग इज़ डैट इसको थोड़ा आप समझो, जब आपने गाड़ी चलाई है तो एकदम से ब्रेक नहीं मारते, ये धीरे धीरे करके ब्रेक मारते हैं ताकि झटका ना लगे इकोनॉमी में। सो दिस इज़ मैनेज्ड फ्लोट, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं ये। ऑन कॉन्ट्रेरी अमेरिका में they really don't care about this, they straight away care about this only, this and the jobs. And China mein they care more on this, right? They don't care much on this. So this is a difference in various countries. हाँ, वैसे तो बहुत कंट्रीज कंट्रोल द मार्केट फोर्सेस, बट जनरली जो मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस। सो गाइज, अभी तक आपको 2 चीज़ें क्लियर होगी कि एक्सचेंज रेट्स कितनी तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग, एक होता है मैनेज्ड। फ्लोटिंग होता है जो खुद हो रहा है, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, सिर्फ किस में, इन्फ्लेशन में। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करो, बास। फिक्स्ड में क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का काम, इन्फ्लेशन नहीं है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना है, फॉरेन का एक्सचेंज रेट। मैनेज में मिक्सचर है दोनों का, थोड़ा थोड़ा करके। तो इंडिया में मैनेज्ड है, यूएस और यूरोप में फ्लोटिंग है,
एंड चाइना एंड अदर, ये आपका होमवर्क है कि फिक्स्ड किस किस में है। चाइना भी अब फिक्स्ड में नहीं है गाइस जनरली, चाइना भी मिक्स में ही जा रहा है जनरली। ऐसा नहीं है कि कंट्रीज़ सारे ऐसे ही करते हैं कि यूएसए तो बिल्कुल ही फ्लोटिंग है, ऐसा नहीं है गाइस। यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है दे आल्सो ट्राई टू कंट्रोल देयर करेंसी, वो भी कंट्रोल करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, अगर डॉलर गिरना शुरू कर देगा तो सरकार आंखें बंद कर लेगी कि हम तो फॉल फ्लोटिंग यूज़ कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट मच। यस, उनकी इन्वॉल्वमेंट हो ही जाएगी इवेंचुअली। इट्स जस्ट देर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द थिंग्स गाइज इन द एंटायर वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि हम फ्लोटिंग है तो फ्लोटिंग में रहेंगे, हम मैनेज में तो मैनेज में रहेंगे। इंडिया में भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यूज़ किया था एलपीजी के टाइम्स में, इफ़ यू रिमेंबर। जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे तो हमने भी अपनी करेंसी फिक्स की थी, डीवैल्यू की थी थोड़े टाइम के लिए, राइट। वी विल कमिंग टू डैट नाउ। बट यू वर सेइंग टू रिपीट दिस अगेन। सी गाइज, इसमें क्या होता है करेंसी ना, जैसे इसमें क्या होता है, 1 रुपी, $1 इज इक्वल टू 50 रुपी, अगले दिन 70, फिर 80, ऊपर नीचे जा रहे हैं लगातार फ्लोटिंग और मैनेज में, ठीक है। फिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिक्स में होगा, अगर आरबीआई फिक्स कर दे तो $1 इज इक्वल टू 10 रुपी, जो मर्जी हो जाए, ये फिक्स है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा है, देखो किसने पूछा था ये क्वेश्चन। सो समवन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आरुषि वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट हमारा $1 इंडिया के 10 रुपये के बराबर है, सीधा सीधा, राइट। अब कभी भी अगर अथर्व का मन हो गया कि यार मुझे ना डॉलर्स चाहिए, तो अथर्व बैंक में जाएगा, 10 रुपये देगा और $1 लेके फ़ौरन चला जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉमिस गिवन बाय द गवर्नमेंट नाउ। गवर्नमेंट को जब जब 10 रुपये प्रिंट करने हुए, वेन एवर गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रिंट दिस 10 रुपी, गवर्नमेंट हैव टू कीप दिस एज अ बैकअप। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फॉरेक्स बैक्ड है ये। मीन्स ऐसे नहीं गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है पैसे, इसको रखना ही पड़ेगा। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिकॉज प्रॉमिस किया है। कल को अगर मान लो आदित्य जाता है सेंट्रल बैंक के पास कि ये लो सर 10 रुपये रखो, मुझे $1 दो, और सेंट्रल बैंक बोला जाइए पैसे तो है नहीं हमारे पास। तो वेयर इज़ द सॉवरेन प्रॉमिस, वेयर इज़ द कमिटमेंट। तो फेथ ही खत्म हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम से। तो गवर्नमेंट को ये देना ही पड़ेगा, सेंट्रल बैंक को। जब तक इसका बेनिफिट क्या है कि अगर $1 10 रुपये के बराबर है, तो जब भी अगर भुवन फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, सो इसके लिए फिक्स है वर्ल्ड वाइड। जो पेन या पेंसिल ये बेच रहा है अमेरिका को, और जो उनसे पैसा ले रहा है, डैट विल बी फिक्स्ड रिगार्डलेस एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे तो होंगे नहीं। दूसरे में क्या होता है, कभी एक्सचेंज रेट ऊपर कभी नीचे, उसमें प्रॉफिट कम ज़्यादा होते रहते हैं, राइट। लेकिन इसका नुकसान आता है बैड टाइम्स में। क्यों? मान लो इंडिया की हालत टाइट है, इंडिया की बहुत बुरी हालत है। ये जो 10 रुपये का जो प्रॉमिस था, $1 को 10 रुपी, ये हमें ही पता है अंदर अंदर सिटीजन्स को कि यार हालत तो टाइट है। और इंडिया में 10 रुपये का तो कुछ आ भी नहीं रहा है वैसे भी। यू कैंट बाय एनीथिंग फ्रॉम दिस 10 रुपी। मैं ऐसा करता हूँ, बैंक में जाता हूँ, $1 लेता हूँ 10 रुपये के बदले, और फ़ौरन घूम के आता हूँ। मेरे पास 50, 100, 5, 10, 20 हज़ार रुपये थे, उसके मैं डॉलर में कन्वर्ट कराऊंगा। बिकॉज डॉलर की परचेजिंग पावर तो उतनी है, रुपये की कम हुई है इन रियलिटी, जो हमें इंटरनल हमें पता है लेकिन लोगों को नहीं पता। तो सारे के सारे लोग ना रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए भागेंगे कि जी हमें डॉलर ही दे दो, हमें रुपये नहीं चाहिए, रुपये से तो कुछ खरीद नहीं पा रहे। तो इससे क्या होगा, आपका सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। सो गवर्नमेंट हैव टू मेंटेन दिस थिंग। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो उन सबको डॉलर दे देगी और चुपचाप बैठी रहेगी इतने में फिक्स करके, या तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं, अब हम $1 इज इक्वल टू 10 रुपी नहीं देंगे, अब हम $1 इज इक्वल टू 200 रुपी देंगे। तो ये एकदम से गिर गया, देख लो। बाकी तो धीरे धीरे गिरते हैं, 50, 60, 70, 80, राइट, फ्लोटिंग में। यहाँ पे ये एकदम से गिरा। सो ये ड्रॉबैक है इसमें, बिकॉज इट विल फॉल इमीडिएटली। अब गवर्नमेंट के पास दो ही रास्ते होंगे, या तो आपको डॉलर दे देगी कि चलो डॉलर ले लो, इससे तुम खुश रहो, या तो गवर्नमेंट को उसको घटाना पड़ेगा सो दैट दे कैन मैनेज दिस थिंग। अब गवर्नमेंट और प्रिंट नहीं कर पाएगी, हमें गवर्नमेंट कांट प्रिंट दिस बिकॉज गवर्नमेंट के पास खुद पैसे नहीं है फॉरेक्स खरीदने के। तो गवर्नमेंट एक लूप में फंस जाएगी, वहाँ लोग मांगने आएंगे और वहाँ और प्रिंट कर नहीं पाएंगे। बिकॉज अब प्रिंट करने से पहले तो फॉरेक्स खरीदना पड़ता है आपको, मतलब डॉलर खरीदना पड़ेगा। सो इट्स अ लूप। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। So, sir, I don't know, but for me, during bad time exchange rate can give rise to black market. हाँ, ब्लैक मार्केट ही हुई ना एक तरह से, ये लोग कंट्री छोड़ के चले जाएंगे या डॉलर ले लेंगे। फिक्स रेट गवर्नमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। चौधरी सिंह, ड्यूरिंग बैड टाइम एक्सचेंज रेट कैन गिव राइज टू ब्लैक, फ्लोटिंग रेट एंड फ्लक्चुएट रेट हैव। सी फ्लोटिंग का और इसका मैं अभी आता हूँ, आई विल बी कमिंग टू डैट जस्ट इन अ मोमेंट। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो इन द मीन वाइल मुझे आप।
हमें अब आप समझ गए, आई होप यू गॉट द पॉइंट, दिस डायग्राम इज़ गुड टू यू, कि अब सेंट्रल बैंक बेचारा अलग अलग सेंट्रल बैंक अलग अलग चीज़ें कंट्रोल करता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक बेचारा ये भी हमारा मेन पॉलिसी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना ही है, बट हाँ वी मैनेज दिस थिंग एज वेल, राइट। अच्छा, आंसर मी दिस थिंग गाइज, should you get settled, should you stay in India only or should you leave the country? I'm not encouraging anything, but what should be your answer to this? इंडिया में ही रहें या फॉरेन चले जाएं सर? व्हाट डू यू से? थिंक एन आंसर, रीज़न दे देना उसको, मीन्स टाइप वन वर्ड रिप्लाई टू दिस, मीन्स शुड यू स्टे इन इंडिया और शुड यू लीव द कंट्री एंड गेट सेटल्ड इन अब्रॉड लाइक कैनेडा, अमेरिका, यूरोप, अच्छी कंट्री बोल रहा हूँ, नेपाल नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। स्टे इन इंडिया, ओके। दर्पण, नेवर गिव अप, दर्पण का तो फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, ओके। पैसा ज़्यादा कहाँ कमाओगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, वेयर कैन यू अर्न मोर मनी, स्ट्रेट, इंडिया और अमेरिका, और लेट्स टेक इंडिया और अमेरिका, कम बैक टू इंडिया, अर्जुन सो पैट्रियोटिक, हाँ। यूरोप, पैसा ज़्यादा कहाँ कमाओगे, वेयर विल यू अर्न मोर मनी गाइस? मैं इंडिया में ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ सर, ओके। सी गाइस, यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है, इफ़ समवन आस्क्स यू दिस क्वेश्चन बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो, दो तरह की करेंसी रेट्स होते हैं, एक होता है मार्केट एक्सचेंज रेट, एक होता है पीपीपी। मार्केट एक्सचेंज रेट नाम ही बता रहा है, मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा, समटाइम्स अप समटाइम डाउन। इंडिया में जैसे $1 इज इक्वल टू अराउंड 80 रुपीज़, समथिंग 82, 83, few days back, few months back it was around 70s, like that. This is market exchange rate. ये ऊपर नीचे रहता ही है, राइट। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द जियो पॉलिटिकल कंडीशन, तो ये मार्केट के ऊपर होता है। बट देर इज़ वन मोर एक्सचेंज रेट गाइस, जो कोई नहीं देखता, हमें देखना ये चाहिए कहीं सेटल होने से पहले। दिस इज कॉल्ड एज परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब है कि उस कंट्री की कॉस्ट ऑफ लिविंग असली में क्या है, मीन्स लोकल प्राइस कितने के हैं वहाँ पे। जैसे लेट्स गिव यू एन एग्जांपल ऑन दिस गाइस, तो लेट्स सी, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूँ आज कि अगर आप इंडिया में 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच में पैसा कमाते हो, यू आर हैविंग ए गुड लाइफ इन इंडिया गाइस, ट्रस्ट मी। और आप उस 1 लाख रुपए से इंडिया में बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं जो अमेरिका में नहीं खरीद पाते। सो इंडिया का 1 लाख रुपया इज़ मच मच बेटर देन अमेरिकाज इक्विवेलेंट। नाउ वन थिंग, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में एक पेप्सी की बॉटल आती है 35 रुपये की, वहाँ पे ये बॉटल आएगी $1.5। गाइज आई वॉन्ट यू टू मल्टीप्लाई दिस थिंग, यार साइड बाई साइड करो इसको ज़रा, इंडियन रुपी में 80 से कर लो, 2 इंटू 80 तो 160 रुपये के आसपास एक पेप्सी की बॉटल इंडिया में 35 रुपया, सेम बॉटल, सेम प्लास्टिक, सेम लिक्विड इनसाइड, वहाँ पे 160 के आसपास। मैक बर्गर, जो मैकडोनल्ड्स का बर्गर है, इंडिया में इट विल कॉस्ट यू 180 रुपी, 150 रुपये के आसपास एक अच्छा बर्गर आपको इंडिया में आ जाएगा मैकडोनल्ड में बैठ के, वहाँ पे आएगा $6 का, 6 इंटू 80 वुड बी 480 रुपये। सेम चीज़ गाइज, आई एम ईटिंग द सेम थिंग, राइट। 86 में ज़्यादा है, मैं 80 रुपी लेके चल रहा हूँ अभी, आई एम टेकिंग राउंड ऑफ फिगर। तो इंडिया में 180 रुपये, 150 से 180, द सेम बर्गर विल कॉस्ट इन अमेरिका 500 रुपया। चलो रेस्टोरेंट, इंडिया में 300 रुपये में बढ़िया खाना हो जाता है गाइस, जैसे 300 रुपये में ना हम पूरे दिन का खाना खा लें, मतलब एक अच्छा, मतलब अच्छा। लेकिन चलो, इवन इफ़ यू गो टू अ नॉर्मल स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट या ढाबा, यू विल हैव अ गुड मील एट 300 रुपी। द सेम मील विल कॉस्ट यू इन अमेरिका अराउंड $15, डेट इज़ 15 इंटू 80 कितना हुआ, 1200 रुपये। कहाँ 300 रुपया, कहाँ 1200 रुपया। लेट मी गिव यू वन लास्ट एग्जाम्पल, ये तो आप डायरेक्टली रिलेट कर दोगे। इंडिया में इंटरनेट कनेक्शन 700 रुपया आता है, अनलिमिटेड, है ना। 700 रुपये में आप अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड इंटरनेट देखो बैठ के, रील्स एंड ऑल दैट। द सेम इंटरनेट विल कॉस्ट यू इन अमेरिका वुड बी कितना बना, 5,000 रुपये, द सेम इंटरनेट। नाउ कमिंग टू the thing guys, what I want to say,
हमें ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। यस डेफिनेटली इफ़ यू गो टू अमेरिका यू विल अर्न मोर मनी, बट अमेरिका में खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। दीज आर डेवलप्ड नेशंस एंड दीज नेशंस आर हैविंग वेरी हाई इन्फ्लेशन। इंडिया में आपने बाल कटवाने हो तो अच्छी जगह में भी आप 400 रुपये में बाल कटवा सकते हो, 300 to 400 रुपी इन अ गुड सैलून। लड़कों का बोल रहा हूँ, लड़कियों का तो इट्स वेरी कॉस्टली, बट for in America it will cost you around $50, or it can touch up to $100 as well sometimes। एक नॉर्मल सैलून में 8-10 हज़ार रुपये तो बाल कटवाने के लगेंगे। What I want to say, there are two types of exchange rates। So one exchange rate is called as PPP, purchasing power parity। One is market exchange rate। मार्केट एक्सचेंज रेट सिर्फ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, डेट इज़ वर्ल्ड ट्रेड। दुनिया में जो ट्रेड होता है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल इफ़ टुडे Behava wants to import and export business in America from India to America, तो उसे मार्केट एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा कि यार डॉलर 80 रुपये चल रहा है, 86 है, 85 है, उसके हिसाब से चलेगा। बट अगर आरुषि को अगर अमेरिका में सेटल होना है तो आरुषि को ये नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि मैं कितना रुपया कमाऊं कि इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पे रख पाऊँ। इन रियलिटी इंडिया, चलो इसको मैं अब आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। चलो गाइज, अभी $1 इज इक्वल टू कितना इंडियन रुपी चल रहा है? टाइप इन द चैट बॉक्स। 85। मतलब मार्केट एक्सचेंज रेट इंडियन रुपी का विद $1 इज़ 86 रुपी, अराउंड 85। लेकिन पीपीपी के हिसाब से गाइज इट इज़ 20 रुपी। कैन यू सी इन द स्क्रीन? ये देख लो, ये सिर्फ 20 रुपये है। मतलब परचेजिंग पावर में जो उनका $1 है वो इंडिया 20 रुपये के हिसाब से हम खरीद सकते हैं, इतना ही फ़र्क है। इसका मतलब इंडिया की परचेजिंग पावर अच्छी है। जो चीज़ इंडिया में मैं 20 रुपये की खरीद सकता हूँ वहाँ पे मैं $1 में खरीदूँगा वो। सो इंडिया में इतना भी हम पीछे नहीं हुए हैं जो हम सोचते हैं यार रुपी तो 80 रुपी हो गिर गया, 90 रुपये पहुँच रहा है। डैट इज़ मार्केट एक्सचेंज रेट गाइज। डिमांड एंड सप्लाई तो किसी भी फैक्टर में ऊपर नीचे हो सकती है, बट इन रियलिटी वी शुड सी, कभी सेटल होना है किसी कंट्री में हमें ये देखना चाहिए। पाकिस्तान का देख लो, 70 रुपये है। इसका मतलब पाकिस्तान की जो रुपी है उसकी परचेजिंग पावर हैव रियली गॉन डाउन, 670, अराउंड 69 रुपी। सो इफ़ यू वांट टू गेट सेटल्ड इन फॉरेन कंट्री, हमें ये देखना चाहिए कि वहाँ पे खर्चा कितना आएगा रहने का। इंडिया का 20 रुपये वहाँ के डॉलर के बराबर है, पहले ये 17 होता है, 17 रुपी। तो 17 रुपये इज़ नॉट, तभी तो आई वाज सेइंग इंडिया में इफ़ यू अर्न 1 लाख रुपी गाइज यू आर हैविंग ए गुड लाइफ स्टाइल। वो लाइफ स्टाइल आपको वहाँ भी नहीं मिलेगा। ना वाई शुड यू गेट सेटल्ड इन अमेरिका और दीज कंट्रीज़? क्यों आपको सेटल होना चाहिए? वहाँ पे सेटल होने का रीज़न पैसा नहीं है, इट्स नॉट द मनी, बिकॉज पैसा तो आप इंडिया में कमाओगे, उससे बेटर लाइफ स्टाइल रह सकते हो। द रीज़न इज़ गुड एनवायरनमेंट, क्लीन एयर, क्लीन वाटर। वहाँ पे पढ़ाई अच्छी है, दे हैव गुड स्कूल्स, गुड कॉलेजेस, दे हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये रीजंस हैं। गुड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI ज़्यादा है वहाँ पे। लड़कियों को सेफ़ है, लड़कियाँ नौकरी करती हैं वहाँ पे, रात को भी लेट आ सकती हैं, एंड दे डोंट हैव टू फेयर ऑफ समवन कि यार रात को कैसे आएंगे। वहाँ पे लॉ अच्छा है उनका, नॉट बायस्ड कि यार ये गरीब है इसको कुचल दो, और अमीर है सो वी विल फेवर द लॉ इज़ फेवर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। वो तो चलो पूरे वर्ल्ड में रहता है, बट दे हैव इक्वल लॉ। सो दीज आर द रीजन्स पीपल शुड लीव द कंट्री, नॉट द रीज़न कि हमें पैसा ज़्यादा लेना है। पैसा तो इंडिया, हाँ यू कैन से अपॉर्चुनिटीज़ आर मोर। यहाँ पे एक नौकरी के लिए 80 लोग बैठे हैं अप्लाई करने को, वहाँ पे एक जॉब के लिए 10 ही लोग होंगे या 5 ही होंगे, जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो जीडीपी भी अलग अलग तरह से काउंट होता है अलग अलग एक्सचेंज रेट में। यूएसए में सी इफ़ आई कैलकुलेट जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वेरियस कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज रेट्स, मार्केट एक्सचेंज रेट्स, तो यूएसए नंबर 1 30 ट्रिलियन, चाइना 19 ट्रिलियन, जर्मनी, जापान और इंडिया का ऑलमोस्ट बराबर आ ही गया है। इसको ऐसा मत सोचो कि हम इंडिया से, हम जापान से आगे निकल गए हैं, बस जापान ने रेस में भागना छोड़ दिया है, दैट इज़ अ रीज़न। एंड यूके इज़ 3.8, राइट। अगर पीपीपी के हिसाब से जीडीपी देखूँ तो इंडिया 3rd नंबर पे है, जापान 6 ट्रिलियन, इंडिया 15, यूएसए 30 एंड चाइना 40। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। तो वैसे इंडिया 1 2 3 4
5th में है, वैसे 3rd में है। सो पीपीपी में हम देखते हैं परचेजिंग पावर कितनी है उस कंट्री की। ओके, एनी डाउट्स गाइस टिल नाउ? सो वी आर डूइंग करेंसी एक्सचेंज रेट्स. Shravan Shekhar, you just write the purchasing power PPP exchange rates. You will get various websites. ये जो वेबसाइट्स थी ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक की है, IMF की है. दिस इज IMF ऑफिशियल वेबसाइट, इंडियन मॉनेटरी फंड. तो ये ऑथेंटिक डेटा है, दिस इज ऑथेंटिक. ऑल राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइज. अब आपने ये वर्ड सुना होगा, डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिशिएशन, राइट? कि चाइना ने तो अपनी करेंसी डीवैल्यू कर दी एंड ऑल डैट. हम लोग कभी डीवैल्यू नहीं करते. हम लोग तो, हमारा तो डेप्रिशिएट होती है करेंसी या अप्रिशिएट होती है. तो व्हाट डज इट मीन्स एक्चुअली? क्या ये अलग अलग वर्ड हैं या डेप्रिशिएशन एंड डीवैल्यूएशन आर द जस्ट सेम थिंग्स? व्हाट डू यू से गाइस? मीन्स जस्ट प्ले ऑफ इंग्लिश वर्ड्स और is it something really important behind it? Yes guys. High PP is good for a country as they have सागर, ये गलत बोल रहे हो आप. गाड़ी का जो प्राइस इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का होता है उसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं. इसको बोलते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल फ्लो. अभी तक हमने क्या किया है, दिस इज़ द कैपिटल फ्लो वी आर डूइंग. पैसा कैसे जा रहा है. एक और टॉपिक आता है फॉरेक्स में, डेट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो. गुड्स एंड सर्विसेज क्यों फ्लो कर रहे हैं, उसका कुछ हमने पिछली बार टच किया भी था. डेट इज़ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव ट्रेड थ्योरी. इसमें ना क्या रहता है, फ्लो इज़ नॉट इक्वल. इसमें टैक्सेस लगते हैं ऊपर. ऑलराइट, so that's why a car can be cheap over there and can be, iPhone is cheaper over there and costly over here. That could be a reason behind it. Devaluation. It's very nice guys, you already knew this thing. See guys, devaluation और depreciation है ये सेम चीज़ें. दोनों में करेंसी नीचे गिर रही है, करेंसी इज़ फॉलिंग. बट डेप्रिशिएशन में जो करेंसी नीचे गिरती है, डैट इज़ बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई. इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं है. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर, just because of market forces, and that is just because of demand and supply. On contrary, devaluation is again falling of the currency, but this is done by the central bank intentionally. This is done by the governments intentionally. The best example for this is China. China अपनी करेंसी, सी गाइज एक बात मुझे आप बताओ, वैसे China is very advanced in technology. They have very high per capita income. दे हैव वेरी वेरी हाई. मैं आपको, इफ़ आई गिव यू वेरी स्मॉल स्टोरी, जल्दी से 1 मिनट में. कुछ टाइम पहले, फ्यू मंथ्स बैक, आई गॉट दिस चांस टू गिव अ प्रेजेंटेशन इन चाइनीज़ वेबिनार था वहाँ पे. सो दे केम. सो द कंपनी हु कनेक्टेड विद मी, सो आई हैड अ वर्ड विद देम, लूज टॉक जिसको बोलते हैं, नॉट प्रोफेशनल, कि हाउ चाइना इज़ एंड ऑल दैट. उन्होंने मुझे पेमेंट थोड़ी कम दी. सो व्हाट आई टोल्ड देम कि ऐसा करो, ये पेमेंट आप किसी बेगर को दे देना. तो वट शी टोल्ड मी इन रिप्लाई कि वी डोंट हैव बेगर्स ओवर हेयर, हमारे यहाँ कोई गरीब है ही नहीं. आई वॉज वेरी एस्टोनिश्ड. तो इवन शी वॉज एस्टोनिश्ड कि ऐसे कोई बंदा डोनेशन के लिए कैसे बोल सकता है. तो शी डोनेटेड इन अ ऑर्फनेज. चलो ठीक है. देन आई आस्क्ड हर कि हाउ इज़ द सिस्टम, वर्किंग सिस्टम, एंड दोज गाइज वर वेरी टाइम ओरिएंटेड. और बिल्कुल टाइम से आए, टाइम से पहले उन्होंने मेरा कनेक्ट कराया वेबिनार में लोगों के साथ. सेकेंडली, दे वर वेरी वेरी पंचुअल. दे हैड गुड टेक्नोलॉजी ओवर देयर. हाईवेज़ वर रियली गुड. शी शेयर्ड फ्यू फोटोज़ विद मी चाइना की, मतलब रोड्स की, वहाँ की जगह की. इट वॉज अमेजिंग गाइज. वाई आई एम सेइंग दिस, चाइना इतना एडवांस है. हैव यू एवर वंडर्ड, चाइना की करेंसी हमेशा कम ही रहती है एज़ कम्पेयर टू USD. हमेशा. वो तो बढ़ के कितनी होनी चाहिए थी. इट शुड बी मोर देन यूरोपियन करेंसी एज वेल. बट स्टिल इट्स ऑलवेज लेस, बिकॉज चाइनीज़ गवर्नमेंट उसको फिक्स करके रखती है. जो अभी हमने कहा यहाँ पे, fixed and pegged, they generally fix it, they generally devalue it intentionally. क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, जब जब करेंसी नीचे होती है तब तब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं. एंड चाइना इज़ अ बिग एक्सपोर्टिंग कंट्री गाइज. तो चाइना क्या करता है, अपनी करेंसी को जानबूझ के डीवैल्यू करके रखता है
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान उसका बाहर बिके। एंड इससे टूरिस्ट भी इंक्रीज़ होते हैं, बट इससे क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम होती है कंट्री के ऊपर, बिकॉज बाहर वाले लोग, अब इसमें क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन में सब सेम है, बट ये खुद हो रहा है, ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग ऑटोमेटिकली बिकॉज इट इज़ मार्केट फोर्सेज विच इज़ टेकिंग प्लेस। बट चाइना वट एवर इट इज़ डूइंग, इट इज़ कि गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट थोड़ा कम हो जाता है कि कल को गवर्नमेंट का क्रैश हुआ तो, बट इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, इट इज़ मोर स्टेबल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इफ आरुषि इज़ डूइंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, तो इसको रेट्स की टेंशन नहीं रहेगी, एक बार परचेज ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर फाइनल हुआ तो उसी में ही बिकेगा। पर यहाँ पे बेचारा अगर पुनीत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अगर मान लो $1 इज इक्वल टू 80 रुपी टुडे, टुमारो इट्स में भी 100 रुपी, तो इसको तो नुकसान हो जाएगा। सो यहाँ पे ये नुकसान है, इट्स वेरी फ्लक्चुएटिंग, इट्स अनसर्टेन, राइट, बट इट्स मोर लिबरल। यहाँ पे किसी की इंटरफेरेंस नहीं है, ट्रांसपेरेंट है ये, यहाँ पे सारा गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन। आप जब भी ये वर्ड पढ़ोगे आज के बाद कि डीवैल्यूएशन है, इसका मतलब सरकार ने जानबूझ के किया है, एंड वेन एवर इट इज़ डेप्रिशिएशन इट मीन्स ऑटोमेटिकली इट इज़ हैपनिंग। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। तो चाइना जानबूझ के डिवैल्यू अपनी करेंसी करके रखता है, सो दैट द एक्सपोर्ट्स आर ऑलवेज ऑलवेज हायर। एंड चाइना इज़ अ स्टेट ओन्ड बिजनेस गाइज, ये मैंने पिछली बार भी बताया था, चाइना में गवर्नमेंट ही बिजनेस है। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी बिजनेस करती है, वैसे चाइना में एंटायर सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड है, लैंड्स बिल्डिंग सब गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट लोगों को लीज में देती है घर रहने को, गवर्नमेंट पैसा ले रही है उसको, और किसी का खुद का कुछ नहीं है वहाँ पे, सब बिजनेस गवर्नमेंट ही कर रही है। गवर्नमेंट, जैसे आप अपने घर में बैठे हो, आपको टैक्स देना पड़ता है, एसडीएम हो गया, तहसीलदार हो गया, यानी लोकल लेवल प्रधान हो गया, ऐसे ऐसे कितने सारे डिविजन्स हैं हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के, राइट। चाइना में ये सारे के सारे लोगों का काम होता है, लोकल लेवल पे जो भी जो बना रहा है उससे सामान लो और फॉरेन कंट्रीज़ में बेचो और उसको पैसा दो। सो गवर्नमेंट इज़ डूइंग द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड अदर कंट्रीज़। वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ही बिजनेस है, वही एक्सपोर्ट कर रही है। ओके, सी देर इज़ नो वे ऑफ सेइंग थिंग्स लाइक भुवन चाइना का माल। सी गाइज, चाइना में अगर डिग्रेडेड माल बन रहा है गाइस, तो चाइना में अभी अभी टेस्ला की तरह उन्होंने रॉकेट बनाया है जिसको ऊपर भी भेजा जा सकता है, नीचे भी लाया जा सकता है। चाइना हैड क्रिएटेड देयर ओन ईवी व्हीकल्स, चाइना हैव देयर ओन एआई। सो चाइना इज़ मच 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 एडवांस इन टेक्नोलॉजी देन इंडिया एंड देन ऑल द अदर कंट्रीज़। वो तो अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं। इट वॉज ओनली अमेरिका हु कुड हैव मेड अ रॉकेट जिसको वापस रीयूज़ किया जा सकता था, आज तक का वही था। अभी 4 दिन पहले ये न्यूज़ है कि चाइना ने भी सिमिलर रॉकेट बना लिया जैसे टेस्ला ने बनाया था, इलॉन मस्क ने, कि उसको रीयूज़ किया जा सकता है। इट इज़ अ बिग टेक्नोलॉजी गाइज, वो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस, यू हैव नो आइडिया। ये दीज आर जस्ट यू नो द यूट्यूब गिमिक्स की, यार चाइना में चाइनीज़ माल चलता नहीं है। गाइज दीज पीपल आर रियली वेरी एडवांस नाउ, वेरी एडवांस, वी कांट इवन थिंक ऑफ डैट। कम्युनिज़्म का मैंने पिछली बार बताया था। क्लीशे इन व्हाट सेंस, आई डेंट गेट द पॉइंट। किस चीज़ को क्लीशे बोला कि चाइना का माल क्लीशे है? ये इट्स नॉट डुप्लीकेट दर्पण। वो लोग ना इन रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग होती है। सिंस आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड गाइज, अगर मुझे कोई फ़ोन देगा तो मैं फ़ोन को तोड़ के उसको देखूंगा, वैसा वैसा फ़ोन बना लूँगा। चाइना डू रिवर्स इंजीनियरिंग, बनी बनाई चीज़ को तोड़ दो फिर वैसा वैसा बना दो। इसको कॉपी करना ही बोलते हैं, पर इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। वैसा वैसा बना सकते हैं, पर वैसे तो हम भी बना सकते हैं, पर हम नहीं बना पाए। Coping is also an art, not only art, it needs technology guys, it needs knowledge. We can't do that. We can't create phones in India till today. We are assembling the things guys, we are not producing, we are not, हम लोग उसको डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट असेंबल होता है, पेज पूछ मार के बस उसको असेंबल करके बेच रहे हैं। वी आर नॉट क्रिएटिंग द स्टफ, राइट। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो गाइस एक्सचेंज रेट्स में ना आगे आता है फ्री फ्लोट, हमने कर लिया। मार्क मैनेज्ड होता है, फिक्स होता है, मींस व्हेन इट इज़ फिक्स्ड बाय द कंट्री। सो दीज आर योर एग्जांपल्स। ये आपने देखना है फ्री फ्लोट कहाँ है, मैनेज फ्लोट कहाँ है, राइट, एंड फिक्स्ड कहाँ है। डॉलराइजेशन मैंने आपको अभी बताया, जस्ट टोल्ड यू नाउ। जब कोई कंट्री अपनी करेंसी डिच कर दे और दूसरे की करेंसी यूज़ कर ले,
इट कुड बी डॉलर, इट कुड बी एनी अदर करेंसी. नेपाल अगर इंडिया की करेंसी यूज़ कर लेगा इट्स गुड, तो उसको बोलेंगे डॉलराइजेशन. अगर इंडिया कल को डॉलर यूज़ करने शुरू कर दे इसको भी बोलेंगे डॉलराइजेशन. इज़ इट गुड? या इट इज़ गुड, लेकिन इट इज़ ओनली गुड इफ़ द बिजनेस साइकिल्स आर सेम. आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ. तो इक्वाडोर, पनामा, इन कंट्रीज़ ने यूज़ किया है. इन्होंने क्यों यूज़ किया सर? बिकॉज ये अमेरिका के पड़ोसी हैं. जैसे इंडिया नेपाल का पड़ोसी है, नेपाल इंडिया का पड़ोसी है. दीज कंट्रीज़ आर अमेरिकन कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ और मे बी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़. तो ये लोग कर सकते हैं. दे हैव सिमिलर बिजनेस साइकिल्स. यूरोप ने यूज़ किया, यूरोपियन यूनियन ने यूज़ किया. वाई? बिकॉज दे हैड सिमिलर बिजनेस साइकिल्स. इंडिया नेपाल नहीं कर पाएंगे बिकॉज इंडिया ग्रोइंग नेशन है, नेपाल स्टैगनेंट नेशन है. अगर हमने किया तो नेपाल की तो ब्लास्ट रहेगा नेपाल में तो महंगाई का. यू गॉट द पॉइंट नाउ. मॉनेटरी यूनियंस, आई टोल्ड यू, मॉनेटरी यूनियन जो यूनियन होती हैं गाइज, वो कंट्रीज़ जो पड़ोसी हैं, सेम माइंडसेट के हैं, दे हैव द सेम बिजनेस साइकिल्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बिजनेस साइकिल शुड बी सेम, राइट? सो दे हैव सेम करेंसी एंड सेम सेंट्रल बैंक. ये मैं अभी हम फिट करने वाले हैं. एंड इकोनॉमिक यूनियन होता है व्हेन दे हैव फ्री ट्रेड्स. मतलब आप ऐसा समझो कि फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दे आर इन अमेरिका एंड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दे आर इन कैनेडा एज वेल एंड फ्यू ऑफ देम आर इन यूरोप. तो आई नो पीपल एंड आई नो फ्रॉम देम कि कुछ लोग सुबह तैयार होके कनाडा से अमेरिका जाते हैं जॉब करने, शाम को वापस आ जाते हैं. So they have free trade agreement and these countries are open markets and these countries are economic unions. बस करेंसी सेम नहीं है. बाकी जैसे मैं नेपाल घूमने जाऊँ, सुबह शाम को वापस आ जाऊँ, नेपाल में मैं जॉब भी कर सकता हूँ बैठ के. सो मूवमेंट ऑफ पीपल इज़ फ्री. दैट इज़ इकोनॉमिक यूनियन दैट वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस इन अ मोमेंट. सम कंट्रीज हैव ड्यूअल करेंसी एज वेल. इंडियन रुपी भी चला हुआ है, यूएसडी भी चला हुआ है. इक्वाडोर में तो ऐसे ही, इक्वाडोर में उन्होंने यूएसडी भी चला दिया, बिटकॉइन भी चला दिया है. जिम्बाब्वे में ऐसा होता है, जिम्बाब्वे हैड वेरी बैड रिसेशन एंड इकोनॉमिक. जिम्बाब्वे, जापान, टर्की और ग्रीस, ये तो फाइनेंशियल रिसर्च के स्टडीज़ हैं, पता होना चाहिए वहाँ पे क्या हुआ. साउथ एशिया यहाँ पे भी हुआ है. तो इन लोगों ने करेंसी के साथ बहुत छेड़छाड़ की. करेंसी के साथ वैसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए. एंड दे हैड वेरी डेवस्टेटेड रिटर्न्स बिकॉज ऑफ डैट. बहुत ख़राब हुआ, महंगाई बढ़ गई. एंड जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल ज़रूर देखना. दे ग्रीस का एग्जांपल, दे हैड इन्फ्लेशन रेट अप टू 200%. इतना भी गया, 100% में भी गया. सोचो, सारे बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स, सब कोलैप्स. सो एज सच करेंसी के साथ छेड़छाड़ करना इज़ वेरी वेरी बैड. इट्स नॉट ए गुड थिंग, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड बी आस्किंग फ्रॉम योर सेल्फ, सर ये डॉलर ही इतना फेमस क्यों है? वाई डॉलर इज सो मच फेमस? गाइज माई वॉइस इज ब्रेकिंग फॉर एवरीबडी. उत्पल इज सेइंग माई वॉइस इज ब्रेकिंग लाइक सो. इसीलिए देश प्रेमी कम्युनिस्ट होना नहीं, एजुकेटेड. वैभव, अभी तक तो रिवर्स इंजीनियरिंग हेल्पफुल रही है चाइना को. सो अब सारे डरते हैं, इसीलिए चाइना वाले तो दे कैन कॉपी पेस्ट एनीथिंग. पर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भी देन यू नीड टेक्नोलॉजी ना. वी डोंट हैव दैट. इट्स स्टेबिलिटी, गोल्ड बैकिंग. अमृत, गुड. Guys, why dollar is so famous? पेट्रो डॉलर, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस. गोल्ड. सी, इसका ना दो तीन चीज़ें समझ लो. दो तीन चीज़ें वैसे भी आपको समझनी चाहिए. हम लोग लड़ाई में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं. वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन वॉर्स एंड वॉर्स आर नॉट गुड फॉर एनी कंट्री. इवेंचुअली यूरोप ने ये चीज़ बहुत पहले समझ ली थी. दिस इज़ यूरोप, राइट? इन्होंने बहुत पहले समझ लिया था. वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, दे डिसाइडेड एनी हाउ वट सो एवर, हम आपस में नहीं लड़ेंगे. अब दुनिया से लड़ लेंगे, दुनिया को लड़ा देंगे, खुद नहीं लड़ेंगे. वन थिंग. अमेरिका ऑल्सो रियलाइज द सेम थिंग कि हम लोग ये बार बार लड़ाई करना, इट्स नॉट ए गुड थिंग. स्टेबिलिटी के लिए आपको थोड़े टाइम तक शांति रहना ज़रूरी है. पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच we are not understanding as a country like China, as a country like a Pakistan and India, right? Now अमेरिकन डॉलर क्यों फेमस हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, उसके आसपास की बात है. जल्दी से सुना देता हूँ आपको मैं. तो
यूरोप की हालत टाइट थी, दो दे वर वेरी रिच, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में रूल किया, इंडिया में रूल किया, साउथ एशिया में रूल किया, अफ्रीका में रूल किया, सारे यूरोप ने तो रूल किया, राइट। ब्रिटेन ने, स्पेन ने, पुर्तगाल ने, जैसे आपके गोवा में पुडुचेरी में फ्रेंच थे, पुर्तगालीज आए थे गोवा में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग का वो था, उन्होंने बांट लिए थे कि तुम रख लो या हम रख लेते हैं। थोड़े डच लोगों ने रूल किया था आपका साउथ ईस्ट एशिया में, फॉर एग्जांपल मलेशिया, ब्रुनई, इन सब में यहाँ पे गए थे डच, ठीक है। अफ्रीका में सब मिक्स गए थे, अफ्रीका के तभी आपने देखना जो उनका मैप है, स्ट्रेट लाइन्स हैं, स्केल से मारी हैं सच में। सिगरेट और दारू की पार्टी चल रही थी, उन्होंने लाइन मारी, ये रे तू रख ले, ये मेरा, मेरा मेरा, लाइक दैट। ऐसे अफ्रीका को डिवाइड किया बैठ के। इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड ऐसे ही हुआ है। एक देयर वाज अ जेंटलमैन, ही केम एंड उन्होंने स्केल से लाइन मार दी, बस बॉर्डर बन गया। दे डिडंट हैव द ग्राउंड रियलिटीज़ व्हाट वाज हैपनिंग। बट बिकॉज ऑफ दिस ऑल वर्ल्ड वॉर, द यूरोप हैड वेरी बैड टाइम। तो अमेरिका इमर्ज्ड, राइट। तो अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया था, पहले ऐसे ही होता था कि हर करेंसी ना सोने से गोल्ड बैक्ड होती थी, कि $1 इज इक्वल टू 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। जैसे आपके पास $1 का नोट है, तो आप बैंक जाओ, आपको $10 10 ग्राम सोना तभी ही मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। मीन्स इट वॉज डैट गुड प्रॉमिस। तो उसके ऊपर सारे लोगों को अच्छा लगा, अरे यार डॉलर इज़ बैक्ड बाय गोल्ड, रियल गोल्ड। जस्ट इमेजिन, अगर मान लो कल को पुनीत के पास गोल्ड होता, मतलब डॉलर होता, बैंक में जाए और डॉलर गोल्ड लेके आ जाए, तो इट्स गुड। गोल्ड तो आप घर में नहीं रख सकते, डॉलर रख सकते हो। तो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, तो सारे कंट्रीज़ को अच्छा लगा ये, तो सारे कंट्रीज़ ने रखना शुरू कर दिए गोल्ड को, यार हम अपने पास गोल्ड रख लेते हैं। पर यहाँ पे ना धीरे धीरे और चीज़ें आना शुरू हुई। इसके बाद क्या हुआ, गल्फ़ कंट्री में पेट्रोल मिलता है, जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ में हो गया, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, यहाँ पेट्रोल बहुत है, क्रूड ऑयल। तो अमेरिका ने क्या किया, देखो इन सब से मीटिंग की, देखो यार तुम लोग क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करो, तुम क्रूड ऑयल बेचो, बस एक प्रॉमिस कर लो हमारे साथ कि क्रूड ऑयल तुम डॉलर में ही बेचोगे, बस पूरे वर्ल्ड में डॉलर में ही क्रूड ऑयल बिकेगा। तो अगर इंडिया को क्रूड ऑयल खरीदना है तो डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एक मीटिंग इन्होंने कर ली थी गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ। ये था दूसरा स्टेप डॉलर का फेमस होने का। तीसरा स्टेप इन्होंने क्या किया, इसको पेट्रोल डॉलर बोलते हैं, पेट्रोल से बना, क्योंकि सारा पेट्रोल डॉलर से खरीदा जाएगा तो पेट्रोल डॉलर आ गया। तीसरा स्टेप इन्होंने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बना दिया अमेरिका में। अमेरिका में आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को एक कमिटमेंट थी कि तुम लोन दो सबको, पाकिस्तान को लोन दो, इंडिया को लोन दो, लेकिन लोन दोगे भी डॉलर में, लोगे भी डॉलर में, दैट यू विल गिव लोन इन डॉलर एंड टेक लोन बैक इन डॉलर। तो अब तो फंस गए, अब सारे इसी में चल रहे थे। ऊपर से इन्होंने बना दिया स्विफ्ट। स्विफ्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, जिसमें पैसा भेजना हो, जैसे हमारा आईएफएससी कोड होता है वैसे उनका स्विफ्ट होता है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर ट्रेड करना है तो स्विफ्ट के बिना होगा ही नहीं, और स्विफ्ट डॉलर में ही काम करता है। बीच में इन्होंने क्या किया, डॉलर का जो कमिटमेंट था ना गोल्ड वाला, दैट हम $1 में 10 ग्राम गोल्ड देंगे, वो प्लेज वापस भी ले ली थी। इस प्लेज को बहुत बहुत निक्सन वॉज द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एट दैट पॉइंट टाइम, ही टुक द प्लेज बैक। तो अब तो गोल्ड में वो प्लेज भी नहीं रही है, वो ख़त्म होगी। लेकिन तब तक दुनिया को इतनी डिपेंडेंसी हो चुकी थी गोल्ड के ऊपर, डैट उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। लोन्स भी सारे गोल्ड में, पेट्रोल भी सारा गोल्ड में, सॉरी लोन भी सारे डॉलर में, पेट्रोल भी सारा डॉलर में, वर्ल्ड ट्रेड सारा डॉलर में आ चुका था, स्विफ्ट भी डॉलर में ही काम कर रहा था। सो टिल टुडे वी डोंट हैव एनी सब्सिट्यूट फॉर दिस गाइज। इसका कोई सब्सिट्यूट बन ही नहीं पाया। चाइना इज़ ट्राइंग, पर चाइना का लोग सारे एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिया ऑल्सो ट्राइड, पर इंडिया का अफ्रीका के अलावा किसी ने एक्सेप्ट किया नहीं। रशिया ऑल्सो ट्राइड टू मेक हिज करेंसी वर्ल्ड ट्रेड करेंसी, बट यूरोप और अमेरिका नहीं माना। सो टिल टुडे ये जो गोल्ड वाला इनका कमिटमेंट था ना, इट वर्कड। एंड आफ्टर डैट जो इन्होंने सबसे डील थी सऊदी अरेबिया के साथ, और डील थी आपकी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ, वो आज तक चल रही है। और जो कंट्री अगेंस्ट जाते हैं उनके ऊपर लड़ाई कर देते हैं। रिसेंटली रशिया के ऊपर जैसे हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ऑल ऑफ सडन रात को अगले दिन बोला जी ₹500 काम नहीं करते हैं। सिमिलरली यूएसए ने कहा जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, जितना भी फॉरेक्स रिजर्व है रशिया के पास डॉलर का, ख़त्म। जैसे हमारी डिमोनेटाइजेशन का सारा रिजर्व ख़त्म कर दिया। इससे बहुत कंट्री डर गए हैं, कंट्रीज आर वरिड। कल को अमेरिका को कुछ हो गया तो सारा वर्ल्ड विल कोलैप्स। सेकंड, स्विफ्ट में से भी निकाल दिया रशिया को, रशिया इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं कर सकता अब। सोचो, आपको मैं बोलूँ कि गौरव यू हैव टू सेंड मी मनी, राइट, और अब मैं बोलूँ यार आप आईएफएससी कोड यूज़ नहीं कर सकते, तो यू कांट सेंड द मनी एनीवेयर विदाउट दैट, राइट।
तो स्विफ्ट की बिना आप इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं कर सकते हो। तो रशिया तो कुछ टाइम पहले बार्टर सिस्टम में काम कर रहा था, हमसे उन्होंने फार्मा मेडिसिन खरीदी, हमें उन्होंने क्रूड ऑयल दिया, तो बार्टर में काम करना पड़ा बेचारों को। सो दैट इज़ वाई डॉलर इज़ सो फेमस, बट यस इट्स स्केरी एज वेल, डैम स्केरी गाइज। कल को कुछ हो गया तो it is something which can affect the entire world, right? Okay, first European would destroy by Rishikesh, good observation. Great entrepreneur, great guys. Any doubts? Please ask. Expanded their business. ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसेस आर नो लेगेसी की बात तो लेगेसी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से बनी ना। दर्पण, गुड पॉइंट। गेन प्रोमिनेंस। विच टेस्ट आरुषि? चाइना इंडिया विल रूल दर्पण, गुड। दर्पण, इट सीम्स लाइक यू वॉच क्वाइट गुड यूट्यूब वीडियोस। मैं समझ रहा हूँ कहाँ से दीज थॉट्स आर कमिंग। ऑल राइट गाइज, गुड्स एंड सर्विसेज में आते हैं। व्हाट वुड हैपन अगर गुड्स किसी कंट्री में आना शुरू हो जाएं, जैसे फ्री में गुड्स आ जाएं। यू नो मैनी ऑफ यू सेट कि सर वहाँ पे गाड़ी 90 लाख की है, 90 लाख, तो इंडिया में 1.5 करोड़ की है। वाई इट इज़ हैपनिंग? लेट्स सी, चाइना में कोई चीज़ बनी 200 रुपये की, ठीक है, वही चीज़ इंडिया में बनाने को हमें लगते हैं 300 रुपये फॉर एग्जाम्पल, राइट? चाइना 200 में क्यों बना पा रहा है? इट कुड बी बेटर एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इट कुड बी वेरी चीप लेबर, इट कुड बी दे हैव वेरी हाई मास प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बहुत सस्ते में बन रहे हैं। इंडिया में हम वी मे बी नॉट एफिशिएंट, और मे वी डोंट हैव रॉ मटेरियल समथिंग, बट वी आर द सेम प्रोडक्ट इज कॉस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज़ 300-200। अगर हम इसको पास कर लें इंडिया में, स्ट्रेट अवे पास इट इनटू इंडिया, इट विल किल द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का, स्ट्रेट अवे सारी की सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाएंगी स्ट्रेट। पर हम तो इंडियंस हैं, इंडियन गवर्नमेंट को हमने वोट दिया है, राइट? और यही लोग हमारे लिए नौकरी जनरेट कर रहे हैं, बिजनेसमैन, तो इनको हम ख़त्म तो ऐसे नहीं होने देंगे। सो व्हाट गवर्नमेंट डज, गवर्नमेंट देखती है कौन सी चीज़ कितने में आ रही है और हम कितने में बना रहे हैं। तो अगर ये 200 में आ रहा था तो गवर्नमेंट यहाँ बैरियर लगा देगी, ट्रेड बैरियर, एंड इसमें 100 रुपये टैक्स डाल देगी गवर्नमेंट, टैरिफ्स, ड्यूटी, राइट? तो यहाँ पे जब ये अंदर आएगा तो सेम थिंग नाउ विल कॉस्ट 325 रुपी, हायर देन द डोमेस्टिक कॉस्ट। तो ये भी खुश ही हैं, बिकॉज दे हैव द हाई मीन्स बिगेस्ट मार्केट ऑफ इंडिया। बट द थिंग इज दैट गवर्नमेंट सेव्ड इंडियन इंडस्ट्रीज। द सेम थिंग डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग राइट नाउ। चाइना क्या करता है गाइज? चाइना में ना एक डंपिंग, मैं तो आपको बताऊँ 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। हाँ, एंटी डंपिंग, वेरी नाइस सोरेन शेखर, मैं ये बोलने वाला था। चाइना में डंपिंग की आदत है। चाइना क्या करता है, अब इसको आपको कैसे बताऊँ? फॉर एग्जांपल आरुषि का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? आरुषि के पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे, बहुत ही अच्छे कपड़े, बट आरुषि ने और कपड़े ले लिए। अब पुराने कपड़े का क्या करे? आरुषि हैड 2 ऑप्शंस, या तो सारे फेंक दे, है ना, बट फेंकना भी नॉट अ गुड ऑप्शन। अब आरुषि वॉज फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, वाई नॉट टू सेल ईच क्लोथ एट 1 रुपी, डंप ही कर देती हूँ, सस्ते में भाई कुछ तो आएगा। तो चाइना ने 1-1 रुपये का कपड़ा बेच दिया मार्केट में, बाकी कपड़े ऑल अदर क्लोथिंग्स वर कॉस्टिंग यू 1000 रुपी एंड शी वॉज जस्ट चार्जिंग 1 रुपी। अरे बाकी दुकानें बंद हो जाएंगी। दिस इज़ व्हाट चाइना डज, इसको बोलते हैं डंपिंग। चाइना इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है गाइज, इतनी ज़्यादा, यू कांट इवन इमेजिन, इट इज़ मास स्केल, मास, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतना ज़्यादा है, इट इज़ सो चीप, सो चीप। और उसमें से कई चीज़ें तो एक्सपायर होने के कगार पे होती हैं, मीन्स दे गेट वेस्टेड, फेंकना पड़ता है चाइना को, इतनी प्रोडक्शन है वहाँ पे। मतलब यू कांट इवन इमेजिन गाइज व्हाट इज़ देयर स्केल एंड आवर स्केल। अभी आप बहुत बहुत, यू हैव नॉट, यू शुड स्टडी द चाइना एज अ केस स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में। तो क्या करते हैं उनके ना, जो प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाले होते हैं या ऑन द वर्ज ऑफ जस्ट थ्रोइंग इट अवे, दे इंस्टेड इट दे डंप इन अदर कंट्रीज़। उसमें ना वो डंप कर देते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। मान लो ये 200 रुपये की चीज़ थी, एक्सपायर होने वाली है, ये 20 रुपये की बेच देंगे इंडिया में, जस्ट एट 20 डैम रुपी।
ये जो कंपनीज थी ना हमारी 300 वाली, इससे तो दे विल जस्ट गेट इरोडेड। इनका तो नामो निशान ख़त्म हो जाएगा कंट्री से। तो ऑल द कंट्रीज दे आर फेड अप ऑफ दिस थिंग। सारी दुनिया के लोग परेशान है इस चीज़ से कि यार चाइना इतना सस्ता क्यों बना दे रहा है यार। सबसे ज़्यादा अमेरिका, सबसे ज़्यादा, क्योंकि द बिगेस्ट मार्केट ऑफ चाइना इज़ अमेरिका। तो दे इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी कि चाइना के ऊपर अगर ये 20 रुपये का बेच रहा है तो इसमें 400 रुपये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं वो लोग कि अब बेच के दिखा 20 रुपये का। इंडिया में भी हमने एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई हैं सो डैट दे डोंट सेल इट एट चीप प्राइस, पेनी प्राइजेज। मतलब एक पेन जो हम 50 रुपये का ले रहे हैं, दे विल सेल इट एट जस्ट 1 डैम रुपी गाइज। 1 रुपये का पेन बेच जाएंगे इंडिया में वो लोग, बिकॉज एनी हाउ उन्होंने फेंक नहीं था, उनको तो कुछ भी नहीं है। सो दे नाउ दे सेल इन अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका। तो इसके ऊपर ना फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो इकोनॉमीज ओपन करने में एक नुकसान है कि डोमेस्टिक प्राइस और वर्ल्ड प्राइस अगर इक्वल आ गया ना, तो जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, एक तो दे आर इनएफिशिएंट, या तो इनको एफिशिएंट करो और इनकी स्किल अप स्किल करो, उसके बाद दे कैन प्रोड्यूस एट चाइनीज़ लेवल में। लेकिन वो तो कर नहीं पाएंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो हमें टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, तभी ओपन इकोनॉमी में ना फिर इसको थोड़ा सा जो प्राइजेज हैं, डोमेस्टिक प्राइस और वर्ल्ड प्राइस, में थोड़ा सा अल्ट्रेशन आता है। समटाइम्स इट इज़ ग्रेटर, समटाइम्स लेस, बिकॉज हमें इसको ट्रेड बैरियर्स डालने पड़ते हैं बीच में। वी हैव टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस। अगर रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई देन तो चाइना विल कम्प्लीटली इन्वेड इन इंडिया। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही है, वी आर फ्लाइंग आर जेट, जेट चाइना से खरीदा था, चाइना ने फ्यूज़ ही बंद कर दिया, जेट बैठ गया नीचे। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम क्या प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। ये आता है अब FDI, वट यू जो हमने पहले पढ़ा डेट वॉज FII। नाउ वी आर सर्चिंग अबाउट FDI। चाइना जो FDI इंडिया में ला रहा है वो कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है एंड वाई, फर्स्टली, राइट। बिकॉज अगर डिफेंस में या स्ट्रेटेजिक कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया तो हमारे हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। सेकेंडली, वी हैव टू सी वाई चाइना इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इन इंडिया। इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट है चाइना की, FDI में भी एंड FIIs में भी। वेरी वेरी चीप, दर्पण बहुत चीप है वहाँ के प्रोडक्ट्स। यस यू कैन quit the meeting if there is a power cut. All right, now coming to this, so we have to protect the domestic companies, तभी फ्री मूवमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करते, राइट। इसके अलावा दे आर फ्यू यूनियंस जो बनी थी। अब ये रिस्ट्रिक्शंस कैसे अप्लाई करते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी होता है, इंपोर्ट ड्यूटी में टैक्स डाल दिया, एम्बार्गो होता है, बंद कर दिया बिल्कुल। उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी होता है। एंटी डंपिंग होता है मतलब वही आपका उसके ऊपर दे हैव टू पुट अ लॉट ऑफ टैक्सेस ऑन दैट, ऑन डंपिंग बेसिकली। डंपिंग याद रखना, डंपिंग इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर अ कंट्री। लिमिट और कोटा होता है कि इतना ही हम लेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, उसमें लिमिट लगानी पड़ती है। इंडस्ट्रीज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये मैंने बता दिया। अगर फाइट लगी है, हमने प्लेन टेक ऑफ किया, वहाँ से फ्यूज़ ऑफ कर दिया चाइना, तो लो हो गई लड़ाई। ये आप करोगे, दिस इज़ योर होमवर्क, VER एंड DCR। इसमें याद रखना जो नई कंपनीज़ होती हैं उसमें FDI बंद कर देती है गवर्नमेंट, बिकॉज नई कंपनीज़ आप बेबी कंपनीज़, उनको ग्रो करना है। सेकेंडली, कई बार खुद ही मना कर देते हैं जानबूझ के, अरे भाई चाइना प्लीज़ बंद कर दे, मत भेज इंडिया में, हमारी कंपनीज ये हो जाएंगे। ऐसा करना पड़ता है, हमने जापान के साथ बहुत किया। जापान वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग्स। तो जापान का तो हाथ जोड़ दिया, भाई मत भेजो यहाँ पे, तुम अपने कहीं और भेज लो, हमारे इंडिया में मत भेजो, कहीं और चले जाओ प्लीज़, नहीं तो हमें आपके ऊपर सेंक्शंस लगाने पड़ेंगे। सो दीज आर द थिंग्स डैट डू हैपन, राइट। इसके लिए हमने यूनियन बनाए हैं गाइस, ये चीज़ आपको अब समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। बाईलेटरल होता है, दो कंट्रीज आपस में अच्छे दोस्त बन गए, लव बर्ड्स, याद रखो इसको। बाई, दो लोग, कि हम दोनों आपस में ट्रेड करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आरुषि और स्वर्ण शेखर आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ये आपस में कुछ करेंगे, तो इसको होता है बाईलेटरल टाइज। मल्टीलेटरल ट्राई होता है मिलनसार कंट्रीज़ लाइक सिंगापुर, उसको सभी के साथ दोस्ती रखनी पड़ेगी, बिकॉज सिंगापुर इज़ अ स्मॉल कंट्री गाइज, खुद का तो कुछ है नहीं, ना एग्रीकल्चर है ना वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो सारा का सारा पैसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब जो शिप्स वहाँ रुक रहे हैं, ट्रांसफ़र मतलब ऑन द ट्रांजिट, उसी में कमा रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड मल्टीलेटरल ट्राइज। ये छोटे कंट्रीज़ को करना पड़ता है, सभी से बना के रखनी पड़ती है। हेजेमनी होता है, हेजेमनी मतलब आर्म ट्विस्टिंग, दादागिरी, अरे तुम्हें करना ही पड़ेगा, जो मर्जी कर लो, लाइक चाइना, लाइक अमेरिका, दे हैव द हेजेमनी गाइज। इन लोगों के पास पावर है, दे कैन मेक द पॉलिसीज़ एंड ब्रेक द पॉलिसीज़ ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है चाइना का। और टारकी होता है कि हम तो अकेले ही करेंगे जी, लाइक नॉर्थ कोरिया, हमें नहीं चाहिए कोई, हम तो अकेले ही काम कर लेंगे। तो इन सारे के चक्कर में ये G7 कंट्रीज़ बने, बड़े बड़े कंट्रीज़, मतलब दी ज़्यादा रीजनल एग्रीमेंट्स जो इन्होंने किए थे, G7, G20, सार्क, इसमें मैं अभी आता हूँ।
Before this, I would like to explain you this very important concept, economic unions, guys. बताओ, anybody who is having some knowledge of this, what is this, guys? Time is also. Yes, guys, please. Any idea on this? मॉनेटरी यूनियन, ठीक है. तो ये ईयू क्या होता है? ईयू, व्हाट इज़ ईयू? इकोनॉमिक यूनियन. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ देख लो, इससे आपका काफ़ी सारा कंसेप्ट ठीक हो जाएगा. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि भाई तुम मुझसे ट्रेड करो, मैं तुमसे ट्रेड करूँगा, वन ऑन वन. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल आरुषि. तो आरुषि ने बोला सर मैं आपसे ट्रेड करूँगी, मैं आरुषि से ट्रेड करूँगा, हम दोनों आपस में करेंगे, कोई टैक्स नहीं डालेंगे. उसमें कॉल्ड है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वन ऑन वन, राइट. कोई टैक्स नहीं लगेगा, FII में, FDI में, गुड्स में, सर्विसेज में, फ्री में आने दो. इसके ऊपर आता है कस्टम यूनियन. अब क्या हुआ, आरुषि ने अपने दोस्तों को बताया, लाइक प्रियांशी को बताया, उसके बाद पुनीत को बताया, अमन को बताया, अरे यार ऐसा भी होता है, ठीक है जी. तो हम सब मिल गए, अब हम सब ने एक ग्रुप बना लिया, इसको बोलते हैं कस्टम यूनियन, राइट. इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो है ही है, साथ में हमने किसी और को अपने ग्रुप में डालना है या नहीं डालना है वो अब हम डिसाइड करेंगे. अब फॉर एग्जांपल स्वर्ण शेखर केम टू अस, सर मुझे भी ग्रुप में ले लो. देन वी ऑल विल डिसाइड कि इसको लेना है या नहीं लेना है, या इसके साथ ट्रेड करना है नहीं करना है. इसको बोलते हैं कस्टम यूनियन, जब 4-5 कंट्री आपस में मिल गए. इसके बाद है कॉमन मार्केट. ये होता है जो अमेरिका और कनाडा का बीच में है, यूरोप में है. व्हाट इज दिस, कि अगर, और इंडिया नेपाल में भी बोला जा सकता है, अगर आदित्य बोले कि सर मेरी ना नेपाल में नौकरी लग गई है, वेरी नाइस, तो कैसे जाओगे? सुबह जाऊँगा सर बस पकड़ के, शाम को वापस आ जाऊँगा. इसको बोलते हैं कॉमन मार्केट. मतलब सुबह जाए, शाम को वापस आ जाए. या नेपाल का कोई इंसान यहाँ जॉब कर रहा है, शाम को वापस चला जाए. यस, इट हैपन्स, इट इज़ अ कॉमन मार्केट गाइज. बट चाइना के साथ ऐसा नहीं कर सकते ना, वहाँ तो वीज़ा लगेगा. नेपाल में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है. तो देयर इज़ फ्री मोबिलिटी ऑफ पीपल. लोग यहाँ से वहाँ आराम से जा सकते हैं, नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू. फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेज एंड फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल. पैसा भी जा सकता है, गुड्स भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. कनाडा में, अमेरिका में लोग ऐसे करते हैं, कनाडा से सुबह जाते हैं, अमेरिका जॉब करते हैं, शाम को वापस जाते हैं, अमेरिका से कनाडा जाते हैं. मैक्सिको के साथ अभी है बैरियर्स, बट कनाडा अमेरिका में नहीं, यूरोप में भी सेम है. देन कम्स द EU गाइज. इट इज़ नॉट यूरोपियन यूनियन, इट इज़ इकोनॉमिक यूनियन. यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे के सारे जो लोग इकट्ठे आए थे ना, इन सारों ने एक मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड की, यार हम ना एक जैसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएंगे ताकि हम लोग जो हमारा बिजनेस साइकिल अलग अलग है उसको पहले से कंट्रोल कर लें. तो यूरोपियन यूनियन इज़ पार्ट ऑफ दिस. अब यूरोपियन यूनियन एक नंबर और ऊपर चला गया गाइस, दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ यूनियन. उन्होंने एक ही सेंट्रल बैंक बना दिया और एक ही करेंसी बना दी, तो इट इज़ अ मॉनेटरी यूनियन. तो यूरोपियन यूनियन इज़ नॉट ओनली इकोनॉमिक यूनियन, इट इज़ मॉनेटरी यूनियन. मतलब एक बैंक, एक करेंसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी पूरे 10-15 कंट्रीज़ के लिए. सो दिस इज़ कॉल्ड, दिस इज़ हाउ. सो ये सब एक दूसरे के सबसेक्ट हैं. मतलब मॉनेटरी यूनियन में EU है ही है, EU में CM है ही है, तो दिस इज़ सबसेक्शन. आई होप यू गॉट द पॉइंट गाइज, एवरीबडी. नाफ्टा जो था रिशु, वो था नॉर्थ अमेरिकन. नॉर्थ अमेरिका में ना सारी कंट्रीज़ आती हैं, लाइक ये हो गया मैक्सिको हो गया, कनाडा, अमेरिका, इनमें ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है. मतलब अगर आपने यहाँ से वहाँ सामान भेजना तो टैक्स नहीं पड़ता आपको, आप आराम से जा सकते हो. एशियन का एग्जांपल मैं बताता हूँ. अब इसमें आई होप यू गॉट द पॉइंट गाइज. तो World War I और II के टाइम में इन्होंने यूनियंस बनाई थे. बहुत समझदार हो गए कि यार लड़ाई की कोई फ़ायदा नहीं है, बिजनेस साइकिल सेम करते हैं, सेम सेंट्रल बैंक रखते हैं, बिजनेस करेंगे, अमीर बनेंगे, बाकी को लड़ने दो. सो दिस इज़ व्हाट दे डिसाइडेड, राइट. और ब्रेग्जिट अभी अभी हुआ है, जब अब इनमें भी आपस में मैंने कहा था दे हैव द ग्रजेस. तो जो ब्रिटेन था, जो UK था, इट लेफ्ट, वो छोड़ गया, भागो, मैं तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ काम. तो अगेन इट वॉज नॉट ए गुड डिसीजन. तो आई होप यू गॉट द पॉइंट. G7 है बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ का, मतलब वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज़ जितने भी हैं दे आर इन G5. पहले G5 था, फिर G7 बन गया, फिर आया G20. G20 में तो सारे घुस गए हैं, तो देख लेना, इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं. सार्क है साउथ एशियन, इंडिया साउथ एशिया में है, एशिया भी बहुत बड़ा है, उसके साउथ में है. सो साउथ एशियन में आई थिंक इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज़ हैं.
तो ये है साउथ एशियन, हमने आपस में बना ली दोस्ती, या तुम मेरे से ले लेना मैं तुमसे ले लूँगा वैसा। यूरोपियन यूनियन ही हमने पढ़ लिया है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका। लेट मी शो इन द मैप इटसेल्फ गाइस, वर्ल्ड मैप। जस्ट 5-10 minutes more and we are good to go, alright? Because I want to complete this topic today. अगली बार से we will be starting equity research most probably guys। आज हमारा मेन ख़त्म हो गया ये। So before we start equity research हमें monetary policy तो आनी चाहिए ना। So ये एशिया वाले आपस में मिल गए, ये अफ्रीका वाले थे ये आपस में मिल गए, राइट। इन्होंने अफ्रीकन यूनियन बनाया, हमने सार्क बना लिया। ये सीन है नीचे वालों का, ये सीन है ये वाले, राइट। सो ये सब आपस में इसलिए मिलते गए बिकॉज दे वांटेड टू डू गुड ट्रेड विद ईच अदर। और आपके G5 और G7 में ये बड़े बड़े कंट्रीज़ आ गए, रिचेस्ट कंट्रीज़, उसमें से यही है मेन, कनाडा, US और यूरोपियन कंट्रीज़, राइट। ब्रिक्स ज़रूर बना, ब्रिक्स में वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, राइट, रशिया, ये बड़े बड़े कंट्रीज़ ब्रिक्स में आए सारे के सारे, राइट। एंड इसके अलावा व्हाट इज़ लेफ्ट, ब्रिक्स आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये हमने कर ही लिया। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबडी। So yeah, these organizations they play a very important role. And should you settle abroad, डॉलर में एक चीज़ ये भी चलती है गाइस, वाटर डायमंड पैराडॉक्स बोलते हैं। वाटर इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ सो हाई तो उसकी वैल्यू नहीं है, डायमंड की अवेलेबिलिटी कम है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। गॉट द पॉइंट एवरीबडी। ट्रेड डेफिशिएट जहाँ, ये तो आप इट्स योर होमवर्क गाइस, व्हाट आर द टॉप 5 इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। इट इज़ इंपॉर्टेंट इन इक्विटी रिसर्च, इट विल बी बेनिफिशियल। अभी जैसे ईरान के साथ देयर इज़ गोइंग टू बी अ वॉर, राइट, तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, सो इट्स गोइंग टू अफेक्ट आवर इंडस्ट्रीज एज वेल। सो यू नीड टू सी, राइट, ट्रेड डेफिसिट, इट्स अ वेरी इजी डेफिनेशन गाइस। फ्यू थिंग्स विच वर